So, hello everyone. A very warm welcome to all of you on the very exciting session, Memory Development Program. Yeah, and Forget No More. The name of the session is Forget No More. It is a great initiative by our directors, Mr. Vikrant Kapoor and Mrs. Muskan Kapoor. वो हमेशा ऐसे कुछ नई नई हमें चीजें सिखाने के लिए ऐसे एक अच्छे लोगों को हमारे साथ लेके आते हैं, right? And I, Sargun, on behalf of Angels Paradise and Oxford International School and Grace Healthcare, welcomes our today's memory coach, Mr. Anand Kasibatla. Right, sir? Yeah. So before moving ahead, I just want to tell you about the Anand sir, and I just want to share the screen also. Anand sir is a professional speaker, corporate trainer, author, and a Limca book of. Yeah, just a second. Limca book of record holder. In the last 23 years, several organizations, entrepreneurs, educators, students, and people from several organizations from all walks of life have immensely benefited from Anand sir's training programs on focus, memory, and learning skills. Anand sir has delivered his speeches and presentations in several countries such as Singapore, Kenya, Philippines, Thailand, Indonesia, Nepal. Before moving ahead, I just want to welcome our director, Mr. Vikrant Kapoor. Hello, sir. Yeah, hello. Good morning, everybody. Good morning, Anand sir. How are you? Good morning, Ji. Very good morning. I'm fine. Thank you. Thanks for the invite. Yeah. So we are really honored to have Anand ji with us. So Anand ji is associated with me on a business circle, and I know him for quite a long. And the first session that I attended for Anand sir, I was really amazed ki how intelligently the memory can be developed. कि मेमोरी एक ऐसी चीज होती है जो हमें लगता है हम हर चीज पे मेहनत करते हैं वी स्टार्ट डेवलपिंग आवर बॉडीज वी स्टार्ट डेवलपिंग आवर इंटेलेक्ट वी वर्क अपॉन एवरीथिंग बट हाउ कैन वी वर्क अपॉन द मेमोरी डेवलपमेंट दैट इज अ वेरी न्यू थिंग एंड आई एम वेरी श्योर कि आज का जो सेशन है जो आनंद सर का जो एक्सपर्टीज है वो आज आपको जब मिलेगा इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू इन योर पर्सनल लाइफ and it will be more helpful to you to train your students because हमारे students हमारी जो education system है that is quite a lot built on the memory कि बच्चे को learn करना पड़ता है memorize करना पड़ता है फिर उसको लिखना होता है so how can we boost our child memory how can we boost our memory so this is what sir is going to tell you. So once again, I welcome Anand sir. He is very dear friend of mine, and I'm absolutely a big fan of his skill. That is a very unique skill. So let's welcome with a great round of applause, Anand sir. Over to you, sir. Sargun, should I start or? Yes, sir. Yes. Yeah, please. Oh, okay. So thank you very much. So let me just pull out the screen first and then we'll get going. Just hold on a sec. Can you see the screen yet? Yes, sir. It's changing. Okay. All right. So just give me 1 second. I'm just adjusting the screen here. Can you see the screen now still? Same screen, sir. Yeah. Okay. Perfect. So this is going to be a topic, forget no more. First of all, a big thank you for Vikrantji for inviting me, and thank you everyone for joining in. And on a Saturday morning, you're all here, and my commitment is, जब तक मेरा program खत्म हो जाएगा, you will be able to learn some very useful stuff which you can use for yourself in your life and take your memory to the next level. So let me ask you this question: how many of you here think that memory is very important? मेमोरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर आप ये सोचते हैं कि तो आप मी बोल के चैट में लिखें. इफ यू थिंक दैट मेमोरी इज वेरी इंपॉर्टेंट, कैन यू जस्ट पुट मी इन द चैट बॉक्स? Okay, thank you so much. All right,
How many of you want to improve your memory by the end of this workshop? जब तक workshop खत्म हो जाएगा, you will have some tools and techniques to take your memory to the next level. You can just put me in the chat box. Amazing. Thank you so much. Thank you. So let's get going. And okay, so very quick journey. I already Sargunji ne share kiya tha. So there are a couple of slides which I just want to share. That's my Limca record which I got back in 1997. 1997 से आज तक वो record किसी ने तोड़ा भी नहीं है. अच्छा, आप मुझे ना एक disclaimer करना है पहले कि मुझसे आप हिंदी मत सीखे. I am not an expert in Hindi. अभी मैं सीख रहा हूँ. I am still learning Hindi because I was living in Malaysia for about 12 years and you know Hindi was not my language that time. But I'm just learning now. So learn memory from me. It's absolutely wonderful, but don't learn Hindi from me. And one more thing is I am from Hyderabad. तो हैदराबाद का खासियत ये है कि वहाँ पर जो हिंदी होता है, हिंदी नहीं होता है एक्चुअली. हिंदी के साथ में थोड़ा उर्दू, थोड़ा तेलुगु, तमिल, रशियन, स्पेनिश, फ्रेंच, चेकोस्लोवेकियन सभी मिला के खिचड़ी होता है. वो हिंदी नहीं होता है. तो मैं वहां से आ रहा हूँ, तो वो भी आप माइंड में रख लीजिए. ठीक है. ओके, तो आगे बढ़ेंगे हम लोग. दिस रिकॉर्ड व्हिच आई गॉट इन हैदराबाद इज स्टिल अनब्रोकन मोर देन 20 इयर्स नाउ. And पिछले 26 साल में I've trained over 3 lakh participants from 9 countries, and there were audience from 55 countries who used to attend my workshops from different countries. People used to attend and attend my workshops. Yeah. And okay, so these are a couple of books which I have written. The first 2 books, How to Become a Top Student and Instant Memory Improvement. These are 2 books which I have already written. And जो नीचे आप देख रहे हैं 2 books इस साल में इंडिया से I will be publishing them. And I've also initiated the Malaysian National Memory Championship. So I've started the Malaysian National Memory Championship. So that's one thing which I thought I should share. And these are some of the companies which I've been training people on from various walks of life. Blue chip companies and you know MNC companies I've been training, Fortune 500 companies as well. And शायद आपको this might interest you. I've actually trained the king's granddaughter and king's daughter of Malaysia. So this is something which I've done, which has given an opportunity. And I also trained the Malaysian army also. So physical fitness mein they are the boss, of course. Like in mental fitness mein they thought that you know they can get some guidance from me, so I was actually helping them. And I was on the board of Malaysian Association of Professional Speakers, Toastmasters, Rotary Club. ये सब मेरा बाकी professional चीजें हैं, तो I thought I should share with this. And this is one of the pictures from one of my first training programs which I've done. That was 26 years ago. So 26 years ago, I've done this workshop. I started my life with these workshops. And if you're wondering, where am I? So let me identify myself. So that's me. I was leading the workshop and I was only 17 years old that time. And the people who were there were having experience more than my age in any field which they were in. And I was the youngest in the group, which you can see there. Yeah. So this is where I started. And I am here to give you maximum result. आगे जो 1.5 घंटे का टाइम है हमारे साथ में, I'm going to give you maximum result, and that's my commitment. And if you're also wanting to get maximum result, can you just put MAX in the chat box so I know that you're also looking for maximum result? You can put MAX. All right, thank you so much. Okay, let's go forward and we'll start working on this. So let's get started. And I just want to ask you this question. आपके हिसाब से how good is your memory? 1 being low to 5 being extremely good. इसमें कोई गलत सही नहीं होगा. आपका जो मन कहता है कि अच्छा मेरा मेमोरी 1 है, 2, 3, 4, 5 जो भी है, आपका नंबर वहां पर टाइप कीजिए. What do you think is your okay, let me just put everybody on mute first so that okay, so okay, we have got some numbers there. We have got 3, 7. Okay, very good. Okay, 3. Okay, 3. Fine. Now, wherever your number is, it's okay. There's nothing like validating or judgment नहीं है इसमें. इसमें सिर्फ ये है कि आप कहीं भी हो, we'll take it to the next level. That's all I wanted to say. So I'm not saying कि 1 कम है या 5 ज़्यादा है, ऐसा कुछ नहीं है. जो भी जहाँ भी आप हैं, वहाँ से हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे. So that because you know there is no end for improvement. There are always room for improvement. We can always improve all our life. So that's what I believe in, and that's what we'll try to do. And इसके लिए so this is something which is very important, which I believe in. Every next level of our life will demand a new version of yourself. Would you agree to that? If you agree, can you just put agree in the chat box. जब हम
different चीजों में चलते हैं, I mean when we go into the next level of our life, we have to really upgrade ourselves. जो अब तक चला है वो नहीं चलेगा आगे. So okay, thank you so much for that. And उसके लिए क्या करना है, हमारा perception change करना है, and that is what I work with people on, how they can change their perceptions. So let me give an interesting thing. So I'll share some image on the screen. So let's see what you have to say about this picture. What do you see on the screen? Can just type what do you see on the screen. Okay, frog. A map, a frog. Okay, frog. Thank you so much. अच्छा, तो जब मैंने पिक्चर कहीं डिफरेंट ग्रुप्स में दिखाया था तो डिफरेंट आंसर्स निकल के आया था. तो लोग बोलते हैं दिस इज लुकिंग लाइक फ्रॉग, पीपल से दिस इज लुकिंग लाइक ए चिकन इन द सुपरमार्केट, पीपल से जो मटन के शॉप में जो गोट का हेड मिलता है वो ऐसे दिख रहा है. तो कौन सा, हु इज राइट? द आंसर इज एवरीबडी इज राइट, क्योंकि वो देख पा रहा है, दैट इज देयर परसेप्शन. अगर आपने नाना पाटेकर का एक मूवी है अब तक चप्पन 2, सेकंड पार्ट ऑफ अब तक चप्पन, उसमें स्टार्टिंग का डायलॉग होता है, बहुत बढ़िया डायलॉग, व्हिच आई बिलीव इन. सो ही सेज दैट देयर इज नो सच थिंग एज रियलिटी, व्हाट यू सी इज ट्रू फॉर यू, योर परसेप्शंस और योर रियलिटी. अगर आप ये फ्रॉग मानेंगे ये फ्रॉग है, अब अगर ये चिकन मानेंगे चिकन है. बट यू नो देयर आर सम पीपल हु सेड दैट दिस इज अ हॉर्स. So can you see a horse in this picture? Oh, you said horse. Okay, great, sir. Sargun. Okay. So horse. How many of you can see the horse there? No. Okay. Let me help you see the horse. So if you can see the horse, put horse in the chat box. If you can see it, you can either put yes or horse in the chat box. Yes, superb. And do you know that's exactly the same picture which I've shown earlier? Is the same picture. So let me show you both. So this was a frog and there you go, that was a horse. It's the same picture. But then क्या हुआ ना, थोड़ा हमने उसको tilt किया था. Now ये क्यों बता रहा हूँ? What I want to drive home by this is, जब हमारा नजरिया बदल जाता है ना, हम जो देख रहे हैं वो चीज बदलना शुरू हो जाता है. When you change how you are looking at, what you look at actually changes. Now ये जिंदगी में काफी चीजों के लिए, हर चीज के लिए सही है और मेमोरी के लिए तो बहुत ही सही है ना. काफी बार क्या होता है ना कि लोग सोच लेते कि यार मेरा एज ज्यादा हो रहा है इसलिए मुझे याद नहीं होता है. ऐसा कभी सुना है आपने कभी सुना है कि एज ज्यादा होने से मेमोरी कम हो जाएगा? एनीवन हर्ड अबाउट लाइक दैट? ओके, यस, ट्रू. ओके, गॉट इट. एंड कहाँ से लेके आते हैं? आई मीन वेयर डिड दिस बिलीफ सिस्टम कम फ्रॉम? ओके, इसका कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है, ऐसे बोला गया है. जैसे आप बचपन में अगर आपको याद होगा तो हमारा एग्जाम्पल्स जोक्स ऐसे होते रहता है कि एब्सेंट माइंडेड प्रोफेसर के बारे में जोक होता है, या फॉरगेटफुल ग्रैंडफादर जो सिर के ऊपर चश्मा लगाया और पूरा घर ढूंढ रहा है, उसके ऊपर जोक्स होता है. हम लोग ना वो जोक्स सुन के बड़े हुए हैं. एंड देन वी ऑल्सो सी, जब हमारा बुजुर्ग लोग होते हैं ना वो भूल जाते हैं अक्सर, तो हम लोग सोचते हैं कि हाँ यार ये तो सही है, बचपन में भी सुना है, अब लोग देख रहे हैं सच में, तो शायद ये सही है. और जब हम उसको मानना शुरू कर देते ना, दैट इज व्हाट विल इम्पैक्ट योर मेमोरी. एज हैज नथिंग टू डू विद द मेमोरी. तो कैसे काम करता है मैं आपको बताऊंगा. सो व्हेन पीपल बिलीव, लेट्स से फॉर एग्जांपल आई बिलीव दैट बिकॉज माय एज इज ग्रोइंग हायर आई कैन नॉट रिमेंबर, तो इसका क्या रिजल्ट होगा, इम्पैक्ट क्या होगा? आई विल नॉट ट्राई because I know I cannot remember. Because I don't try, I will not be able to remember. And because I don't remember, I will always say age के वजह से मैंने याद नहीं कर पाया. That's what people think. Okay, let me just mute everybody again. All right. Okay. So this is how the whole process works in. Okay. So and people don't say that people never say I forgot because I never tried. People always say I forgot because I am old. Now this is where the whole challenge comes in. All right. And please do participate. So I'm seeing that you're already actively participating, and please keep participating. Thank you very much for that, because when you participate, that is where the impact comes up. जैसे सरगुन जी ने बताया था, आप my request is also that keep your cameras on. जैसे कैमरा ऑन होगा ना, माइंड को एक ट्रिगर मिलेगा कि अच्छा this is something important going on. Once your camera is off, let me tell you, whether you are interested or whatever is the case, your mind will go here and there easily. तो कैमरा ऑन रखना आपके लिए जरूरी है. तो इट इज फॉर योर ओन गुड, बिकॉज जैसे ना अभी आई थिंक
there are a lot of people here and I'll not be able to see 51 people at one go. I will not be able to see, let me tell you, because मेरा जो स्क्रीन है 25 लोग दिखते हैं मैक्सिमम, राइट? लेकिन मेरे लिए ऑन नहीं करिए आप, आपके लिए ऑन करना है, क्योंकि आप जब ऑन करेंगे your mind will start focusing because there is something happening right in front of you. The moment you switch off the camera, your mind will like, okay, थोड़ा WhatsApp check कर लेते हैं, कोई ये करते हैं. आपका गलती नहीं है ये, आपका mind ऐसे behave करते हैं. So that is how the mind actually works. So please do participate. आपका कुछ questions होगा तो आगे 1 hour के लिए please make sure that there are no distractions, no parallel apps running in the background. Now that will make sure that you don't lose your internet bandwidth and also you don't lose your mental bandwidth as well. Yeah. And I recommend you to take notes. I know you're all teachers, but still, I also come from teachers family and I have a lot of respect and regard for teachers. And I know I always say one thing, मैंने एक बहुत important quote पढ़ा था, एक जिंदगी में एक interesting quote मैंने पढ़ा था. I just want to share with you. And the quote simply says, if you can read this, thank your teacher. If you can read this, thank your teacher. So itna, I mean, this is the role of teachers in life. So I have a lot of respect for you all. I come from a family of teachers, as I told you. So this is an honor for me to be with all the teachers who are actually building up the country. Now, officers and politicians and government is not building up the country according to me. The teachers are building up the country. And thanks for being there. And I really appreciate as well. Okay, Acha, so the slides are not in the presentation mode. Let me just share. Hold on a second, कुछ slides का चक्कर है. 1 minute hold कीजिए, मैं अभी slides को on करते हैं. Are the slides in presentation mode now? Can you see the slides? Okay. Thank you, Himangi ma'am, for sharing that. By the way, I just want to share that I have my panel psychologist with me. She's Miss Himangi Joshi from Pune. She's a school psychologist and she's my go-to person for any kind of psychology information chahiye. And any of my participants or parents want some counseling, she is the person who is the, always I refer, because she has got more than 14 years of experience and I have been working with her for a very long time and she always helps me out in seeing the psychological angles of the things. Thanks for your time, ma'am. Thank you very much. Okay, so let's move on and let me share. Welcome, Himangi ma'am. Yeah. All right, so agar aapko kuch questions hoga, so please do ask your questions. I am reading the chat box, so you can ask your questions. And aapko kuch light bulb aha moment hua hai, aap usko bhi share kar sakte hain. Ya aap mujhse kuch agree nahi karte hain, आप मुझे रोक के बोले कि ओके मिस्टर आनंद, आई डोंट एग्री टू व्हाट यू आर सेइंग, बिकॉज ये नहीं कि मैं जो बोल रहा हूँ गॉस्पेल ट्रूथ बोल रहा हूँ. आई एम शेयरिंग माय आइडियाज व्हिच आई हैव बीन यूजिंग फॉर लास्ट 26 इयर्स. तो आप अगर उसमें से कुछ नहीं मानते हैं तो प्लीज मुझे बताइए. इसमें से क्या होगा ना, आप जब बताएंगे शायद मैं कुछ सीख लूंगा या शायद कुछ डिस्कशन में आपका माइंड कुछ दूसरे तरह के ओपन हो सकता है या हमारा कॉन्वर्सेशंस की वजह से कोई कुछ सीख सकते हैं. So it's always a good idea to share also, whether you like, whether you don't like. You can always share it either in the chat box, unmute and speak also, there's no problem. And let's get started now. And पहली thing ना, हम लोग ये बात करेंगे लोग mistakes क्या करते हैं. मेरा मानना ये है कि अगर आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है, आप सही चीज नहीं किया तो भी चलेगा, लेकिन गलत चीज नहीं करना है आपको. Do you agree to that? If you don't do right things, it is still okay, but don't do wrong things, because that will actually stop your progress. तो memory में भी ना काफी लोग क्या करते हैं ना, I want to share something with due respect to all the people, all the society and what is happening in life. We have not got formal training on how to read, how to learn, how to remember and how to focus. Unfortunately, that's a fact of life. आप जब बच्चे थे, when you are all kids, how many times your parents have told you, बेटा इसके ऊपर ध्यान करना, ध्यान से पढ़ो. आपने सुना होगा. एंड आपके टीचर्स भी बोले होंगे. अभी तो आप टीचर्स हैं तो आप बच्चों से बोलेंगे कि अच्छा बेटा ध्यान से पढ़ो, राइट. आई रिमेंबर माय टीचर सेइंग अ मिलियन टाइम्स प्लीज पे अटेंशन, बट समहाउ वो कॉन्वर्सेशन ही नहीं आया. बच्चे कभी पूछा ही नहीं कि सर अटेंशन कैसे पे करें, मैम अटेंशन कैसे पे करते हैं. तो लोग पूछते भी नहीं और कोई बताते भी नहीं है. इसके वजह से क्या हो ना, कोई सिस्टम नहीं आया है. आई मीन देयर इज नो सिस्टम व्हिच हैज बीन गॉट इन प्लेस.
तो इसके वजह से काफी मिस्टेक्स होते हैं, क्योंकि डाइनिंग टेबल के ऊपर कभी डिस्कशन नहीं होता है कि कैसे याद किया जाए, कोई डिस्कशन नहीं होता है, ना स्कूल में भी होता है, डिस्कशन नहीं होता है. सो लेट मी टॉक अबाउट सम ऑफ द मिस्टेक्स व्हिच पीपल डू. मैं आपसे पूछूंगा, आई मीन दिस इज अ क्वेश्चन डायरेक्टली फॉर यू. I mean, I'm just asking you, this is no right or wrong, I just want to make you aware of certain things. तो आप में से, do you forget names of people? कभी names भूल जाते हैं आप? Okay, thank you, I can see the hand, so thank you very much. So I can see the head movement as well, and that's the power of using the camera on. So non-verbal communication भी हो जाता है. Okay, so I just want to ask you one question. Those of you who have told that you have some challenge with remembering names, I just want to ask you one question. How many times have you told yourself consciously, कोई बंदे से मिलने के पहले और जब मिल रहे हो उस टाइम में कॉन्शियसली आपने अपने आप से बोला है कि यार मैं ना इस पर्सन का नाम याद रखना है, आई वांट टू रिमेंबर दिस लेडीज नेम, आई वांट टू रिमेंबर दिस गाइस नेम. आप कॉन्शियसली अपने आप को बोला है? हैव यू एवर टोल्ड दैट? एनी आंसर्स? हार्डली. तो कॉन्शियसली आप बोलते हैं तो आपको कम प्रॉब्लम होगा. अगर नहीं बोलते हैं तो दैट इज वेयर द एक्चुअल प्रॉब्लम कम्स इन. लोग ना सोचते हैं कि क्योंकि मैं सुन रहा हूं आपको, मुझे याद होना चाहिए. वैसे नहीं होता है जिंदगी में. आपके बच्चों से आपने काफी बार सुना होगा स्टूडेंट से कि मैम आप जब पढ़ा रहे हो ना, सर आप जब पढ़ा रहे हो ना, मुझे सभी कुछ याद आता है, फिर बाद में तो नहीं होता है. हैव यू हर्ड दिस काइंड ऑफ कंप्लेन? नाउ द थिंग इज, कितने बार आप जब स्टूडेंट्स थे, अभी भी फिलहाल अभी भी यू आर अटेंडिंग लॉट ऑफ वेबिनार्स, सेमिनार्स, एंड दिस इज नॉट टू फाइंड फॉल्ट विद एनीबॉडी, ओके, विद ड्यू रेस्पेक्ट आई एम टेलिंग दिस इज व्हाट इज हैपनिंग जस्ट फॉर अवेयरनेस. तो लोग बुक्स पढ़ते हैं, सेमिनार अटेंड करते हैं, वेबिनार अटेंड करते हैं, कुछ भी करते हैं, बट कितने बार अपने आप को बोलते हैं कि एक्टिविटी के पहले जो मेरे टीचर बोल रहा है मुझे उसको याद रखना है, जो मैं पढ़ रहा हूं ना उसको मुझे एब्जॉर्ब करना है. कॉन्शियसली अपने आप से कितने बार बोलते हैं लोग? एब्सोल्युटली बहुत कम, बहुत बहुत कम. तो इसका मतलब क्या हुआ पता है आपको? इसका मतलब ये हुआ है कि हम लोग एक्चुअली डिसीजन लिया ही नहीं है. तो जिंदगी में एक कोलैप्स हुआ है. डिजायर और डिसीजन के बीच में जो अंतर है वो कोलैप्स हो गया है. तो लोग सोचते हैं कि डिजायर इज इक्वल टू डिसीजन. मैं आपको एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल देना चाहूंगा. इट्स लाइक ए फन एग्जांपल. इज इट ओके टू शेयर दैट एग्जांपल? Okay, great. So I have a desire to marry Aishwarya Rai. Okay. So I have a desire. But if you ask me, Anand, do you intend to marry? The answer is no, I don't intend to marry. Desire और intention में काफी फर्क होता है. तो लोग ना desire होता है कि अच्छा मुझे ना गोल्ड मेडल आना चाहिए, मुझे सभी का याद होना चाहिए, मुझे 95% आना चाहिए, मुझे स्टेट रैंक आना चाहिए, वो डिजायर होता है. लेकिन जब हम लोग पढ़ रहे होंगे वॉर जोन में, जब टीचर कुछ बोल रहे होंगे, उस टाइम में उसको एक्टिव नहीं रखेंगे तो माइंड उसके ऊपर काम नहीं करेगा, बिकॉज यू आर नॉट इवन डिसाइडेड. लोग इसका प्रॉब्लम क्यों आता है ना, बिकॉज पीपल थिंक दैट मेमोरी इज ऑटोमेटिक. क्योंकि मैं सुन रहा हूं, क्योंकि मैं समझ रहा हूं, मुझे याद होना चाहिए. अगर ऐसा होगा तो एवरीबॉडी वुड हैव बिकम एन एक्सपर्ट ऑन भगवद गीता बाय नाउ. कितने बार सुने हैं लोग, राइट? तो ऐसे नहीं होता है जिंदगी. You have to consciously activate. So this is galti number one, is that people think that memory is automatic. The second thing which I want to share is that ये बहुत इंपॉर्टेंट मिस्टेक करते हैं, बहुत ही सीरियस क्रूशियल एरर करते हैं कि मेमोरी इज इनपुट इंटेंसिव. शायद आपने सुने होंगे, लेट्स से फॉर एग्जांपल मुझे पाइथागोरस थ्योरम में प्रॉब्लम हो रहा है, एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है? एज अ स्टूडेंट इफ आई एम हैविंग ए प्रॉब्लम इन पाइथागोरस थ्योरम, तो एक एडवाइस मिल जाता है, वेरी सिंपल एडवाइस मिलता है, बेटा इसको ना 4 बार पढ़ लेना, हो जाएगा. आपने सुना है ऐसा एडवाइस? 4 बार सुनेंगे तो आ जाएंगे. तो मुझे पता नहीं है कहाँ से ये एक्चुअली जनरेशंस अपॉन जनरेशंस चल रहा है, ये यही चीज चल रहा है कि 4 बार पढ़ेंगे तो आ जाएंगे. ये कहाँ से आया, एक बार देखते हैं. तो उसके लिए ना हम लोग मान लेते थोड़ी देर के लिए ऐसे काम करेगा. तो क्यों काम करेगा लोग सोच रहे हैं, मेरा हिसाब से ये है कि पाइथागोरस थ्योरम पहले बार, पाइथागोरस थ्योरम सेकंड टाइम, पाइथागोरस थ्योरम थर्ड टाइम, बार बार मैं पढ़ूंगा ना, इसके ऊपर लेयर के ऊपर लेयर होएगा और मेरा कंक्रीट बन के रहेगा यहाँ पर. सो इज दिस व्हाट पीपल थिंक? मे बी आई थिंक दैट्स व्हाट पीपल थिंक कि अच्छा 4 बार कर लिया तो 4 लेयर हो गया, तो तगड़ा बन के वहां पर रुक टिक जाता है. एम आई राइट इन सेइंग दैट? दैट्स व्हाट पीपल थिंक.
बट इंटरेस्टिंग चीज क्या क्या होता है ना, आपको अगर आप मेरे टीचर हैं, आप मेरा प्रोफेसर है, मेरा वाइवा ले रहे हो आप एग्जामिनेशन, और आप मुझे पूछेंगे ओके अनंत, आप टेल मी अबाउट द पाइथागोरस थ्योरम, तो आप मुझे क्या क्या चाह रहे हो आप मुझसे? मैं आउटपुट करना है, दैट इज व्हाट यू वांट, राइट? आउटपुट करना है मुझे, और आउटपुट करने के लिए आप पूछ रहे हैं, तो मैं क्या किया, पूरा जिंदगी मैंने इनपुट का प्रैक्टिस किया, और आप मुझे टेस्ट कर रहे हैं आउटपुट के ऊपर। दैट इज वेयर प्रॉब्लम कम्स विद पीपल। लोग ना ऐसे भी बोलते हैं, सर पता है ना, मैं एक्चुअली ना सुबह ना सीढ़ी के ऊपर बैठ के कॉफी पीते हुए मैंने आंसर पढ़ा था, वो याद है, लेकिन वो आंसर बाहर निकल के नहीं आ रहा है ना। वो बाहर निकल के क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि कभी बाहर निकालने का कोशिश किया ही नहीं हमने। सभी टाइम काफी बार अंदर डालने का कोशिश था। वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट पुटिंग इन, बट द टेस्ट इज ऑन पुलिंग आउट। ये बहुत मेजर एरर होता है जिंदगी में। तो ये कैसा है ना, आई मीन जस्ट टू गिव एन एग्जांपल, पीपल आर प्रैक्टिसिंग स्विमिंग फॉर 4 years। जब उसका ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करने का टाइम आया है, they go and participate in cycling, they will not be able to win because cycling is a different game, swimming is a different game। जिसमें प्रैक्टिस किया उसमें आप माहिर बन सकते हैं। तो आपने इनपुट करके आउटपुट में टेस्ट कैसे दे सकते हैं? Now that is the problem. So if your memory has to really work, you have to work on output. Is it making sense? If it is making sense, can you put MS in the chat box, or then, or you can simply say yes also, because I know that it is making sense then. हाँ जी दीपिका जी बताइए क्वेश्चन। You are on mute, ma'am. Are you unable Yes, to mute? yes, Deepika ma'am, you can mute now. सर जस्ट यही पूछना था कि जैसे आप ठीक कह रहे हैं कि कई बार हमें क्या होता है, कुछ पुरानी बातें बहुत याद रहती हैं, वो जी। इनपुट आउटपुट होती है, इंस्टेंट जो बातें होती है वो हम भूल जाते हैं। बिल्कुल जी। तो यही जो आउटपुट इनपुट का है, जैसे आप कह रहे हैं आउटपुट है इनपुट है, लाइक बहुत थे वो आउटपुट भी नहीं आउटपुट भी नहीं है, बट इंस्टेंट हमने जो किया होता है वो मिनटों में भूल जाते हैं। बिल्कुल सही है। तो आई थिंक दीपिका जी, थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। शायद ये क्वेश्चन सभी के माइंड में आया होगा एंड आपने पूछ लिया है, तो थैंक यू वेरी मच। आपसे मैं आई एम क्लियरिंग दिस डाउट थ्रू दीपिका जी टू एवरीबडी। एंड बेसिकली क्या होता ना, आज का चीज मुझे याद नहीं है। लोग बोलते हैं कि और मुझे ना सुबह क्या खाया वो भी याद नहीं था, पता नहीं मेरा मेमोरी खराब हो गया है, पता नहीं, आई डोंट नो। कभी ऐसा बात आपने सुने होंगे, कल क्या हुआ था मुझे याद नहीं हुआ, है ना? तो ओके, सो बेसिकली क्या होता है ना, मैं आपको दीपिका जी दिस अ क्वेश्चन फॉर यू। जब आप खाना खा रहे होंगे, आपने कभी माइंड में सोचा कि मुझे इसको याद करना है शाम को? नहीं सोचा ना? फिर नहीं सोचा तो कैसे याद होगा? सिंपल सी बात है, यू हैव नॉट इवन टेकन अ डिसीजन टू रिमेंबर। लोग ना लोग सोचते कि ऑटोमेटिक है, अरे मैं तो खाया, मैं तो अंदर गया तो मुझे याद होना चाहिए। नहीं बाबा, ऐसा नहीं होगा। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल बताऊंगा। आपका कुछ कंपनी है, एग्जांपल बता रहा हूं, कि आप मुझे हायर करते हैं, ठीक है? हायर करके बोलेंगे आनंद जी आपका ये कमरा है, यहाँ पर आपका लैपटॉप है, यहाँ से आप काम कीजिए, ठीक है? और आप ना मुझे ये नहीं बताएंगे कि मुझे करना क्या है। लैपटॉप दे दिया और बोलिए काम करो, आप निकल गया। आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं मैं क्या करूंगा बताइए? मैं बता दूंगा, मैं फेसबुक देखूंगा, यूट्यूब देखूंगा, मोहम्मद रफी का गाना सुनूंगा, और आपके बैंडविड्थ यूज करके कुछ और कंपनी में अप्लाई करूंगा जॉब के लिए। सही है ना? क्योंकि आपने मुझे क्या करना है बताया ही नहीं है। आपने मुझे बताया नहीं तो मैं कैसे करूंगा? अगर आप बोलेंगे कि अच्छा आप एक एक्सेल शीट बना दो, शायद मैं बना दूंगा। अगर बोलेंगे कि अच्छा मिनिस्ट्री के साथ में जाके आप अप्रूवल लेके आ जाओ स्कूल के लिए, शायद मैं चले जाऊंगा। आपने कुछ भी नहीं बताया तो मेरा काम मैं करूंगा ना। सिंपली सिंपल थिंग। सो सिंपली आपने दिमाग को बताया ही नहीं। एक इंटरेस्टिंग चीज है, सो दिस इज वन ऑफ माय फ्रेंड, मेरा फादर का फ्रेंड है एक्चुअली। उसने मुझे पूछा है कि बेंगलोर से है, वो बहुत ऑर्थोडॉक्स फैमिली से है, एंड ना उसका बहुत गिल्ट हो रहा था। बोलते आनंद जी आप मेरे साथ बात करना है। मैंने बोला अंकल जी बताओ, ही इज वेरी ओल्ड पर्सन राइट, तो बताओ क्या है? बोलते हैं कि मुझे ना बहुत गिल्ट हो रहा जिंदगी में। मैंने बोला क्या हो गया अंकल, बताओ क्या है? बोलते पिछले 40 साल से
मेरे हिसाब से कम 30-40 साल से हमारे घर में एवरीडे भगवद गीता चलता है, मैं भी पढ़ता हूँ, लेकिन ना मुझे कुछ भी याद नहीं है। मुझे ना नरक में जाऊंगा मैं, मेरे बहुत दुख हो रहा है कि इतने साल से मैं सुन रहा हूँ, मुझे आता नहीं है। तो मैंने उसको सिंपल से क्वेश्चन पूछा है, हाउ मेनी टाइम्स हैव यू कॉन्शियसली डिसाइडेड दैट यू वांट टू रिमेंबर? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द डिजायर, डिजायर तो है, डिसीजन कितने बार लिया आपने? उसका दिमाग खुल के बोलने, कभी नहीं सोचा ऐसे। तो मैंने बोला फिर कैसे, डिसीजन नहीं लिया तो कैसे होगा? एंड डू यू नो आफ्टर दैट in 3 months time he has actually participated in a Bhagavad Gita competition, क्योंकि उसने सीखा है। then he made a decision, I want to remember, then he went for a class। तो उसका क्लास चलता था, हर दिन का 2 घंटे का क्लास चलता था, और इसके बाद में 3 महीने के बाद में कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, तो प्राइज नहीं आया, ठीक है, बट कितना गिल्ट निकल गया ना। ही वाज थिंकिंग व्हाई आई एम नॉट एबल टू रिमेंबर, क्या गलती है मेरे में, इतना पूजा पाठ करता हूं, मैं नरक में चले जाऊंगा। आई मीन दैट्स दिस थिंग। सो सिमिलर, आपने डिसीजन ही नहीं लिया तो कैसे याद होगा? डिसीजन लेके देखिए ना, मजा आ जाएगा आपको। दीपिका जी, डिड आई आंसर योर क्वेश्चन? ओके मैम, थैंक यू। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, एंड बीच में कभी किसी का भी क्वेश्चन होगा ना, आप हैंड राइज कर सकते हैं या डायरेक्टली चैट में पूछ सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। आई विल नॉट फॉरगेट माय प्रेजेंटेशन, ये नहीं कि आपको एंड में ही पूछना है, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप आराम से कभी भी पूछिए, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, लेट्स गो फॉरवर्ड, एंड आई जस्ट वांट टू स्टार्ट विद द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स के साथ में काम करेंगे। मुझे ये पूछना है आपको, डू यू फॉरगेट? प्लीज गिव योर रेस्पॉन्स इन द चैट बॉक्स, डू यू फॉरगेट? ओके, बढ़िया है, थैंक यू, लॉट ऑफ रिस्पॉन्स कमिंग अप, थैंक यू वेरी मच। और जो लोग रेस्पॉन्ड नहीं किया, शायद उसने भूल गया क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन है डू यू फॉरगेट? ओके, ठीक है, तो आंसर है, ठीक है, थैंक यू वेरी मच, एवरीबॉडी फॉरगेट्स, राइट? ओके, तो हम लोग, आई जस्ट वांट टू आस्क यू वन क्वेश्चन, सच में भूल जाते हैं आप? डू यू रियली फॉरगेट? डू यू रियली फॉरगेट और डू यू थिंक यू फॉरगेट? Okay, so let me ask you, give you a task. So teachers को task देने का बहुत दिक्कत है, लेकिन you know, for this session I think I'll give you a task. Is it okay if I give a small task? बढ़िया जी, okay. The task for you is very simple. Try to forget something which you already know. जो आपको पहले से पता है, उसको भूलने का कोशिश कीजिए। Can you do that? Not possible. Exactly. This is what I want you all to remember. This sounds like a joke. How can I forget something which I already know? How can I forget something which I already know? It's impossible. है ना? So आपको ये पता होना चाहिए, it is not possible to forget. लेकिन लोग बोलते हैं ना, forget हो गया, फिर वो ड्रामा क्या है? What is that all about? Now when लोग बोलते हैं ना forget किया मैंने, तो इसमें 2 रीजन। Yes, संदीप, it's impossible. Thank you sir. So 2 रीजन है उसमें। क्या रीजन है? 2 रीजन। पहला चीज ये है कि आप जो भूल गए, आप सोच रहे हैं ना, वो आपके दिमाग में है ही नहीं। ओके, दूसरा चीज है कि आपको उसको बाहर निकालने का क्षमता नहीं डेवलप किया आपने। दिमाग में है लेकिन बाहर नहीं आया। मतलब कई बार ये होता है कि आपके स्टूडेंट्स के साथ में आपने सुना होगा, उसके दे माइट हैव टोल्ड यू दिस, मुझे ना बहुत पढ़ के गया था, एग्जामिनेशन हॉल में ना मेरा माइंड ब्लैंक हो गया था, बाहर निकला, फिर सभी कुछ वापस आ गया। सुना है ऐसे? तो क्या हुआ ना, एग्जामिनेशन हॉल में उसका वो कैपेसिटी नहीं था पुल आउट करने के लिए, और स्ट्रेस रीजन हो सकता है और कुछ भी रीजन हो सकता है। सो आई रिमेम्बर, मैं जब मेरा 8th स्टैंडर्ड में था, तो एक हमारा साइंस का टीचर होता था, मनिधर सर करके। सो ही यूज्ड टू टीच साइंस, फिजिक्स पढ़ाते थे साइंस में। तो जैसे वो मनिधर सर आते थे ना क्लास में, मैं और मेरा दोस्त एक संपत करके था, हम लोग लास्ट बेंच में चले जाते थे। एंड आपके क्लासरूम में ऐसे लोग, काफी लोगों को आप शायद देखते थे, आप जब बच्चे थे आप भी क्या होगा पता नहीं, लास्ट बेंच में जाके हम लोग बुक क्रिकेट खेलते थे। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नो बुक क्रिकेट, ठीक है? तो हम लोग बुक क्रिकेट खेलते थे, एंड दैट टाइम आई नेवर न्यू, बट टुडे आई कैन सी दैट जब भी मैं घर जाता था ना, सो आई ऑलवेज थिंक कि यार मनिधर सर जो पढ़ा है ना, मुझे याद नहीं होता। आई कांट रिमेम्बर व्हाट मनिधर सर टोल्ड। Oh, maybe I am not cut for science. साइंस बहुत मुश्किल है,
एंड देन आई यूज्ड टू गो एंड टॉक टू माय मॉम एंड से कि मॉम मुझे ना साइंस का बहुत दिक्कत हो रहा है, मुझे ट्यूशन लगवाओ। तो उस टाइम में ट्यूशन बहुत महंगा होता था। I mean, I come from very middle class family, and then somehow moms being moms, so she has arranged for a tuition. जब मैंने ट्यूशन जाना शुरू कर दिया ना, it give me more qualification to not listen to Manidhar sir, क्योंकि ट्यूशन में होगा ना कैसे भी, और ट्यूशन में कभी मैं सुना नहीं, क्योंकि सुनने का आदत में जिंदगी में डाला नहीं कभी। एंड मैंने पूरा जिंदगी ये सोचा था कि यार फिजिक्स नॉट फॉर मी। एक्चुअली आई वाज नॉट इवन देयर इन द क्लासरूम, और मैं सोच रहा था कि भूल गया मैं। वही होता है लोगों के साथ में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो पहला चीज है, आपको आपका मेमोरी बढ़िया है, मेमोरी में कोई चैलेंज नहीं है, तो प्रोसेस में प्रॉब्लम है। सो लेट्स सी व्हाट एक्चुअली हैज सम प्रॉब्लम। सो लेट्स टॉक अबाउट 3 डेविल्स जो मेमोरी आपका खत्म कर देते हैं। देयर आर 3 डेविल्स व्हिच आर देयर, यू हैव टू टेक केयर ऑफ देम, एंड जस्ट बीइंग अवेयर ऑफ देम इटसेल्फ आल्सो इज वन स्टेप अहेड। ये जो 3 चीजें हैं, 3 डीज है, एवरीवन एवरीथिंग स्टार्ट्स विद द लेटर डी। ये जो 3 डी हैं, आप इसको आपके सिस्टम में से हटा दिया ना, आपका मेमोरी काम करना अपने आप काम करना शुरू हो जाता है। जो नेचुरली आपका मेमोरी परफेक्ट है वो काम करना शुरू करते हैं। सो लेट्स सी व्हाट आर द 3 डीज। एनी आइडियाज व्हाट कुड बी द 3 डीज? क्या हो सकता है आपके हिसाब से? एनी इवन अ वाइल्ड गेस वुड डू। व्हाट कैन बी 3 डीज जिसके वजह से मेमोरी खत्म हो जाएगा? I mean, you can give any answer, no problem. Depression, okay. Now, depression is actually a clinical word. A psychologist बात करना है depression. So लोग ना actually मैं देखता हूँ, people actually talk about lot of things. मैं किसी से बात करता हूँ, बोलते हैं यार मुझे ना माइग्रेन हो गया। अरे माइग्रेन is a very big thing. Headache is not migraine. लोग ना माइग्रेन ऐसे यूज करते कि वो बहुत easy है, बहुत simple सी चीज है, माइग्रेन हो गया मुझे। एंड लोग बोलते हैं कि या डाइवर्शन इज वन थिंग, डिस्ट्रैक्शन अनदर थिंग। थैंक यू सो मच। एंड मैंने एक बंदे से बात कर रहा था, वो इट वाज नॉट वेल, तो मैंने बोला क्या हो गया? जैसे मैं ना डिप्रेस हूँ, बहुत डिप्रेस हूँ। मैंने बोला क्या हो गया? बोलते मूवी थिएटर के गया, मुझे ना टिकट नहीं मिला, मैं बहुत डिप्रेस हो रहा हूँ। क्या वर्ड्स यूज कर देते हैं वैसे डिप्रेशन होने के लिए। मैंने एक्चुअली हिमांगी जी है यहाँ पर, शायद आपका स्कूल साइकोलॉजिस्ट भी यहाँ पर होंगे। 29 थिंग्स को चेक ऑफ करना है, उसके बाद में होगा कि अच्छा डिप्रेशन है। लोग ना वैसे ही बोल देते हैं। सो पीपल यूज द वर्ड्स जस्ट लाइक दैट, सो व्हिच इज डेंजरस। एनीवेज, सो आपने जो बोला है डिस्ट्रैक्शन, डाइवर्शन, डिप्रेशन, ये सभी चीज मेमोरी को डीएक्टिवेट करते हैं। तो एक्चुअली चीज और कुछ भी है, इसके अलावा भी कुछ है। मैं इज इट ओके टू शेयर देम? द फर्स्ट वन इज डिसबिलीफ। People don't have a belief that they can handle it. Oh, trigonometry ना बहुत difficult है, geography ना बहुत boring है, English ना बहुत very hard है। तो क्या होता है, मैं अगर I'll tell you something very simple. लोग ट्राई नहीं करते हैं इसलिए डिफिकल्ट होता है। लोग सोचते कि डिफिकल्ट है इसलिए ट्राई नहीं करते हैं हम लोग। वो नहीं होता है, उल्टा है, क्योंकि ट्राई नहीं करते हैं तब डिफिकल्ट होता है। एंड सो दैट इज व्हाट द होल प्रॉब्लम इज ऑल अबाउट। सो पीपल डोंट बिलीव। अगर मैं बिलीव ही नहीं करूंगा तो मैं आगे बढ़ूंगा नहीं। लाइक फॉर एग्जांपल, ट्रिग्नोमेट्री वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, एग्जांपल, दैट्स अ बिलीफ, राइट? अगर मैं सोचता हूँ ना मैं ट्रिग्नोमेट्री को हटा के रहता हूँ, आई विल ऑलवेज स्टे अवे फ्रॉम इट, एंड बिकॉज ऑफ दैट एक्चुअली आई एम हैविंग अ प्रॉब्लम, राइट? सो वन इज डिसबिलीफ। द सेकंड वन इज डिसइंटरेस्ट। एंड आपको तो काफी स्टूडेंट्स में मिलता है कि पीपल डोंट हैव अ प्रॉब्लम इन मेमोरी, दे हैव अ प्रॉब्लम इन इंटरेस्ट। काफी लोग बोलते हैं ना कि सर मुझे ना न्यूटन्स 3 लॉस में ना प्रॉब्लम हो रहा है। उसी बंदे से ना आप हैरी पॉटर का 50 स्पेल्स, मैजिक स्पेल्स पूछ लो, वो बोल देंगे फटाफट। चश्मा उड़ाने के लिए क्या स्पेल यूज करना है, लाइट बंद करने के लिए क्या स्पेल यूज करना है, 50 स्पेल हो जाता है, वो तो आ जाएगा। तो ये मेमोरी का प्रॉब्लम नहीं। अगर मेमोरी का प्रॉब्लम है तो हैरी पॉटर का स्पेल भी नहीं आना चाहिए। अगर न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशंस आर नॉट कमिंग तो लॉ ऑफ हैरी पॉटर का भी नहीं आना चाहिए। बट ये अलाइनमेंट का चैलेंज है, इंटरेस्ट नहीं है ना। इंटरेस्ट क्यों नहीं है उसके पीछे 1000 रीजंस हो सकते हैं, बट दिस इंटरेस्ट इज अनदर मेजर थिंग। योर memory is directly proportional to the interest you have in the subject. आपने अपने स्टूडेंट्स का कहीं कुछ भी प्रोग्रेस कार्ड उठा दीजिए, एंड इफ यू उठा के उसमें देखेंगे ना मार्क्स,
जिसमें हाई मार्क्स है उसमें इंटरेस्ट है, 99% वही सही होता है, जिसमें मार्क्स नहीं आया उसका इंटरेस्ट नहीं है, सिंपल सी बात। योर रिजल्ट मेमोरी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटरेस्ट यू हैव इन द सब्जेक्ट। और तीसरा चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और डिसयूज, जो मेमोरी को यूज करना है यूज नहीं करते हैं। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू एक्चुअली नो समथिंग कॉल्ड एज पीपी फोन नंबर। पीपी नंबर बोलते थे काफी टाइम पहले। इफ यू नो व्हाट इज द पीपी नंबर, यू कैन जस्ट पुट पीपी। नोबडी नोज व्हाट्स द पीपी नंबर। क्या बात है, सो यू ऑल ब्लेस्ड सोल्स। हाँ, पीपी नंबर इज एक मोहल्ले में सिर्फ एक ही फोन होता था। ओके, सो उसको बोलते हैं पड़ोसी का फोन। तो मेरे पास में फोन नहीं होगा तो आप मुझे कॉल करना है, किसी और का नंबर देंगे, बोलते हैं अनंत जी को बुलाइए और उसके बेटे को भेजेगा, सर आपके लिए कॉल है। तो मैं भाग भाग के वहां जाऊंगा, आप 10 मिनट के बाद करोगे। सो ठीक है, इट्स कॉल्ड पीपी नंबर। तो इट्स एक्चुअली इंग्लिश में पर्टिकुलर पर्सन है और हिंदी में उसको डायरेक्टली ट्रांसफर कर दिया है कि पड़ोसी फोन बोलते हैं उसको। Anyway, so if you remember, I mean, if you talk to your parents, they will tell you that they have got a very good memory for telephone numbers. इतना बढ़िया मेमोरी होता था ना, किसी को भी याद फोन करना है तो फटाक घुमा देते थे। उस टाइम में वो होता ना डायलिंग फोन, घुमा के उसको याद कर लेते थे। अभी ये मजेदार चीज है ना, आफ्टर द फोन्स हैव कम अप, our memory has gone drastically lower and you can do something after the session is over। मजेदार चीज कर सकते हैं आप, क्या है ना कि आप अपने फोन बुक में चले जाओगे, यू विल फाइंड 15-20 नंबर्स जिसका नाम है लेकिन आपको पता नहीं है कि कौन है। पंकज डुबे कौन है यार, पंकज डुबे कौन है, राहुल वर्मा कौन है। 50-100 नंबर्स ऐसे मिल जाएंगे आपको, क्योंकि आपको पता भी नहीं है क्यों आपने ऐड किया उसमें। इतना खराब है, मतलब खराब मतलब क्या है ना कि हम यूज नहीं करते हैं मेमोरी को। जब हम किसी चीज को यूज नहीं करते हैं, वो बेंज कार हो सकता है, रिवॉल्वर हो सकता है, या मेमोरी हो सकता है, वो इट विल बिकम यूजलेस। जो भी चीज को अगर आपको रनिंग में रखेंगे ना तभी उसका यूज होगा। सो मेमोरी को भी ना रनिंग में रखना चाहिए एंड पीपल डोंट यूज इट अनफॉर्चुनेटली। सो दिस इज व्हाट इज द चैलेंज व्हिच आर कमिंग अप। 3 Ds है। नाउ हम लोग लेट्स गो इनटू द टेक्नोलॉजी पार्ट एंड any question, anything to share, if you want anything to share for a couple of minutes you can share, otherwise we'll go into the main section of what you can actually do and some other philosophy. Any question, anything to share? ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। Let's go move forward. Now I just want to ask you, what drives our memory? Any idea what drives memory? You can unmute and speak or you can share it in the chat box. तो हर चीज को कुछ ना कुछ तो ड्राइव करेंगे ना, तो मेमोरी को भी कुछ ड्राइव करना चाहिए। There could be a lot of things, but any idea what could drive memory? Other people, okay? Our interest and curiosity, okay? Thank you, Rajesh ji. What else? Reading, okay? Perfect. So a lot of things will drive. So there are some important things which drive your memory. There's one thing which is very, very important, and that is your intent. Your intent is what drives your memory. पहले आप अगर सोचेंगे ना मुझे याद रखना है, कॉन्शियसली जब आप सोचेंगे तब जाके आपका मेमोरी काम करना है नहीं करना है, आपका चॉइस मिलेगा। अगर आपका इंटेंट ही नहीं है तो आपका मेमोरी काम ही नहीं करेगा। इंटेंट है तो गारंटी नहीं है, चॉइस है। मतलब हो सकता है कि आप याद भी रखेंगे, या हो सकता है आप याद ना भी रखेंगे। अगर इंटेंट नहीं है ना तो याद नहीं होगा। एंड लोग ना हमेशा इंटेंट यूज नहीं करते हैं। तो वो जो मैं पहले बोला था ना, कितने बार लोग बुक खोलने से पहले बोलेंगे मुझे जो भी मैं पढ़ने वाला हूं मुझे याद होना चाहिए, जो भी मैं सुन रहा हूं मुझे याद होना चाहिए। और अगर आप इंटेंट रखेंगे ना, क्या होता है ना, इंटेंट से हमारा जो डिस्ट्रैक्शंस को मैनेज करने का कैपेसिटी होता है ना वो बढ़ जाता है। जो मैं बचपन के बात बता रहा हूँ, शायद आपके साथ में भी हुआ होगा, या आप देखेंगे अपने स्कूल क्लास के बच्चे में होगा ही होगा, अपने एग्जाम्पल देखे होंगे, अगर आपके साथ में नहीं हुआ तो मैं कुछ सुन रहा हूँ, मेरे टीचर कुछ बता रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ, और मेरे बगल के जो स्टूडेंट होता है ना कोने मारते हैं, अय्या देखो ना देखो ना देखो ना। फिर मैं देखता हूँ क्या कर रहा है, वो कुछ गाय का वो कार्टून बना रहा है, मैं भी उसके में पार्टिसिपेट करूंगा। होता है ऐसा, क्यों होता है? क्योंकि मेरा कोई सुनने का इंटेंट ही नहीं है। क्योंकि टीचर है, क्योंकि टीचर बोल रहा है, मैं सुन रहा हूं क्योंकि मैं वहां पर हूं, इंटेंट नहीं है। अगर मैंने इंटेंट बना लिया, जो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, मान के चलते मेरा फेवरेट सब्जेक्ट सोशल स्टडीज है,
ओके, अंबिका मैम करके होता था, सोशल स्टडीज वाज वन ऑफ माय फेवरेट सब्जेक्ट. सो जैसे जब भी मैम आके बोलना शुरू करते थे, सो दोज हु आर इंटरेस्टेड इन सोशल वी आर एक्चुअली लिसनिंग टू द मैम. मैम सुन रहे थे हम लोग, एंड कोई बच्चा आके बोलेंगे, कोने मारेंगे ना, अरे रुक ना यार, सुनने दो ना, प्लीज लेट मी लिसन. आपने देखा होगा ऐसा भी होता है, क्योंकि मुझे इंटेंट है, मैं उस डिस्ट्रैक्शन को रोकने का कैपेसिटी आया है मुझे. अगर इंटेंट ही नहीं है ना, तो वी आर ओपन टू द डिस्टर्बेंसेस, एवरीथिंग विल डिस्टर्ब अस. ओके, सो दिस इज लाइक अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. जब इंटेंट होगा ना, मेमोरी काम करना अपने आप शुरू होता है. सो अब मतलब फर्स्ट लेवल चेक मार्क हो जाता है इंटेंट से. और दूसरा, दो ड्राइवर है एक्चुअली. इंटेंट इज अ मिनिमम थिंग, और इंटेंट नहीं तो मेमोरी के बारे में बात ही नहीं करना है. इंटेंट के बिना आपको याद हो रहा है तो सिर्फ एक ही आंसर है मेरे लिए, क्यों याद हो रहा है. मैं बताऊं आंसर क्या है. मैं इंटेंट भी नहीं करता हूं, लेकिन मुझे काफी चीज याद हो जाता है. इसका मतलब यह है कि आपने पिछले जन्म में कुछ अच्छा कर्म किया है, तो उसका क्रेडिट अभी भी चल रहा है. इंटेंट के बिना याद कर लिया तो यही चीज है, फिर उसका कोई आंसर ही नहीं है कैसे याद हो रहा है. ठीक है, ओके. सो इंटेंट के बाद में दो चीजें चाहिए आपको, वो है नेसेसिटी और इंटरेस्ट. These are the two most important things which will drive your memory. आपको या नेसेसिटी होना चाहिए, या इंटरेस्ट होना चाहिए, या दोनों होना चाहिए. दोनों होंगे बल्ले बल्ले, मस्त. कम से कम एक होना चाहिए. अगर दोनों नहीं है, गॉड ब्लेस यू, यू विल नेवर रिमेंबर. इंटरेस्ट एंड नेसेसिटी, very very crucial. So these are the two things which drive your memory. So if it is making sense, can you just put MS in the chat box so I know that it is making sense for you? You can just put MS or okay, great. Thank you so much. तो आगे बढ़ते हैं. So now I want to ask you, do you forget? मैं भूला नहीं, ये स्लाइड पहले भी था. Of course, there is not a memory problem. So I want to ask you again because of a different reason. ठीक है. तो दीपिका जी, आप you don't forget actually, but you experience forgetting, right? Okay, ठीक है. तो let me talk about why you forget. Okay, now let me just give you this thing. आप ये जो word है ना, इसको word देखिए, बहुत interesting word है. Forget. इसको अब अगर दूसरे नजरिए से देखेंगे ना, इसका स्पेलिंग ये हो गया. बिफोर यू कुड फॉरगेट समथिंग, यू हैव टू गेट इट. तो मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा. मैं विशाखापट्टनम में पहले बार जब आया था, कुछ गवर्नमेंट ऑफिस में मुझे काम था, और उस ऑफिस में काम जल्दी नहीं निकलते हैं. तो किसी ने लिटरली बोला कि बॉस, आपको ना वहां जाओगे 2-4 घंटे लगेंगे, वहां खाने के लिए भी जगह कुछ नहीं होगा, कुछ लंच बॉक्स पैक करके चले जाना, बिकॉज इट्स लिटिल फार अवे फ्रॉम द सिटी एंड देयर आर नो गुड रेस्टोरेंट्स देयर. तो मैंने सोचा यार इतना देर होता है क्या. मैंने बोला हाँ, ऐसे ऐसे होता है. मैंने बोला ठीक है. फिर क्या होता है, मैंने एक बंदे के पास में गया, बोलता है सर मुझे ना एक डॉक्यूमेंट चाहिए, तो 3rd फ्लोर में चले जाओ. मैंने बोला सर 3rd फ्लोर कैसे जाना है. फिर बोलते सीढ़ी लेके चले जाओ. मैंने बोला वो पता है, लेकिन कहाँ से जाना, बिकॉज आई कुडंट फाइंड एनी स्टेयरकेस देयर. तो ऐसे देखा, बोलता है पहले बार आया क्या. तो तेलुगु में बोला था, तो यहाँ लैंग्वेज तेलुगु है. मैंने बोला हाँ पहले बार आया. तो बोलते कहाँ से हो. मैं बोला दिल्ली से आया हूँ. तो दिल्ली बोलते पता नहीं उसमें क्या हुआ. अच्छा दिल्ली से आए हैं. मैंने बोला हाँ जी. बोला ठीक है, मैं दिखा दूंगा आपको. तो तीसरा फ्लोर को लेके गया पर्सनली, उसमें लिफ्ट नहीं था. तीसरा फ्लोर को लेके गया और दूसरे बंदे को बोला ये मेरा फ्रेंड है, दिल्ली से आया है, उसका कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए, निकाल के दे दे जल्दी फटाफट. और बोल के चले गया. और 15 मिनट में मेरा डॉक्यूमेंट आ गया वापस. आई गॉट द डॉक्यूमेंट, जो नॉर्मली 2-4 घंटे लगते हैं, 15 मिनट के अंदर डॉक्यूमेंट आ गया. फिर मैं नीचे गया उसको थैंक करने के लिए, और मैं निकल गया. और मैं वो जो बंदे का नाम ना आज तक, वो 2 साल हो गया, मैं एग्जैक्टली 2 years बैक इट हैज हैपेंड, एंड आई कैन नॉट फॉरगेट हिज नेम. मैं जिंदगी में कभी उसका नाम भूल ही नहीं सकता हूं. डू यू नो व्हाई? एनी गेस? हाँ, आई कुड रीड सम माइंड्स, क्योंकि उसने मुझे हेल्प किया है. हाँ ठीक है, वो भी सही है. व्हाट एल्स? बहुत पर्सनल रीजन भी है, और कुछ पर्सनल रीजन है. ओके, पर्सनल रीजन ये है, मैं बता दूंगा, आपको मजा आएगा ये सुन के, कि आई कांट रिमेंबर. हाँ, बिकॉज ही सेड माय फ्रेंड. ओके ठीक है, इससे भी पर्सनल है. द रीजन इज दैट इंटेंशन. हाँ ठीक है, ये भी सही है. आपका कल काम जल्दी हो गया. हाँ, टाइम से भी हो गया. हाँ सही, ये भी सही है. तो एक्चुअल रीजन बताऊंगा. एक्चुअल रीजन, आई कैन नॉट फॉरगेट हिज नेम बिकॉज आई डोंट नो हिज नेम.
उसने मुझे उसका नाम बुला ही नहीं कभी। मैं जब 15 मिनट के बाद में नीचे आया था, वो बंदा था ही नहीं वहां पर। आई वॉज वेटिंग फॉर हिम, सो ही वाज नॉट देयर, सो आई लेफ्ट। उसने कभी उसका नाम बताया नहीं, जो मुझे मेरा दिमाग में नहीं है, तो हाउ कैन आई फॉरगेट समथिंग? So this is one thing which people have to understand. People will, अब आपके स्टूडेंट्स आके बोलते हैं कि मैम ने ना ये तो भूल गया मैंने। अच्छा जी, भूला है? Were you playing book cricket? Did you really get it? Or you're thinking that you got it? So forget करने के लिए क्वालिफिकेशन है, before you can forget it, you have to get it. तो पहला वैलिडेशन होना चाहिए कि मैंने लर्न किया कि नहीं किया. So that should be the first thing. तो उसके before you could forget something, you have to get it. And ये एक्चुअली क्लास में होता है. मैं आई वाज जस्ट टेलिंग अबाउट दिस. मेरे 8th स्टैंडर्ड में क्या होता था, ऑफ कोर्स उस टाइम में फोन्स नहीं था, बट अभी फोन्स भी हो गया. दैट्स ए टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो गया फिलहाल. तो आगे बढ़ते हैं. सो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली पीपल आर डूइंग बाय नॉट लिसनिंग टू व्हेन द टीचर इज सेइंग समथिंग. वो टाइम भी गया, फिर बाद में जब पढ़ेंगे उसका टाइम वो भी टाइम गया. एनीवेज, सो आई जस्ट वांट टू मेक दिस स्टेटमेंट. अभी इसमें टेक्नोलॉजी में जाएंगे हम लोग. Any failure of memory is basically a failure of recall. Do you agree to this or not? Agree? Okay, thank you. Agree करेंगे आप? Perfect. Now I want to ask you this question, and this can be a very big awakening for many people. I don't know, but I want to ask this question. The question is, when is the last time you sat down with yourself and told yourself, let me practice some recalling today? आज ना थोड़ा रिकॉल प्रैक्टिस करते चलो. कितने बार आपने बोला है अपने आप से? The answer is almost never. तो देखिए, जिंदगी में कोई कोडर होता है, कोई गिटार आर्टिस्ट होते हैं, कोई प्रेजेंटेशंस अच्छे करते हैं, कोई कुकिंग अच्छे करते हैं, राइट? तो जिंदगी में ना कम से कम कई बार वो बोला होगा कि मुझे ना थोड़ा गिटार प्रैक्टिस करना है आज, मुझे ना थोड़ा स्माइल प्रैक्टिस करना है, मुझे थोड़ा बात करना प्रैक्टिस करना है, मुझे थोड़ा कुकिंग प्रैक्टिस करना है. तभी जाके हम लोग नेक्स्ट लेवल में जाएंगे ना. तो अगर आप कॉन्शियसली रिकॉल प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कैसे रिकॉल आ सकता है? इट्स इम्पॉसिबल टू गेट द रिकॉल. वी कांट बिकम एक्सपर्ट, and because of that people are facing a challenge. So this is the basic challenge, that people don't practice recall. So let me give you some ideas. And काफी बार मुझे ये भी पूछा ना लोग, अच्छा ऐसा भी करना होता है क्या? The answer is ऐसा ही करना है. जब आप रिकॉल का प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप रिकॉल में आप you can't get into the next level. So that is the most important thing which you have to understand. So let me give you some strategies where you can start using recall, or you can start practicing recall. Okay, so आगे बढ़ते हैं. Let's move forward. And this is something which is a very powerful quote. If you do nothing, you get nothing. तो रिकॉल के ऊपर आपने कुछ नहीं किया तो आपको रिकॉल के ऊपर कुछ नहीं होगा ना. ऐसा नेचुरल लॉ है, उसमें कोई वो नहीं है. I mean, this is what happens with people. So let's move further. And let's see how can you activate your recall. Recall activate कैसे करना है वो देखेंगे हम लोग. Now उसमें ना I'm going to give you certain ways in which you can practice your recall. जब तक आपका रिकॉल प्रैक्टिस नहीं करेंगे, रिकॉल इस बाहर निकलने का जब प्रैक्टिस नहीं, जब तक वो नहीं होगा ना, आपके मेमोरी के ऊपर आपका ग्रिप होगा ही नहीं. ठीक है. सो लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू रिकॉल. तो पहले चीज है इंस्टेंट रिकॉल. नाउ इंस्टेंट रिकॉल का मतलब क्या है मैं बता दूंगा आपको. जो भी इंफॉर्मेशन आपने सुना है, तुरंत जितना जल्द हो सके उतना जल्द आपको बाहर निकालना है. राइट देयर एंड राइट देन एंड देयर इटसेल्फ. Now this is the most important thing which people miss out on. ये बहुत सिंपल लग रहा है आपको देखने के लिए, सिंपल है करने के लिए, लेकिन ये बहुत डीप टेक्नोलॉजी है ये. Now instant recall करने से क्या हो जाता है? Now what will happen when you do an instant recall? Now instant recall करने से पहले चीज आपको मैं बताऊंगा, recall is the most important thing, आपको पता है. And one thing I want to share is the first recall. The first recall is always important and always difficult. पहला रिकॉल आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्ट रिकॉल होता है, और लोग ये कब करते हैं? एग्जामिनेशन हॉल में करते हैं. तो क्योंकि तब आप वॉर जोन में प्रैक्टिस कर रहे हो, रिकॉल वॉर जोन में निकालने की कोशिश कर रहे हैं. इसलिए क्या होता है ना, एग्जामिनेशन हॉल में मैं सोचना शुरू कर दूंगा, अरे यार आया नहीं, यार भूल गया है. फिर 2 घंटे के बाद में पूरा याद हो जाएगा, जो नहीं पढ़ा है वो भी याद हो जाएगा. मतलब हद है वो.
So we don't recall at the right time because we have never practiced recalling. So instant recall में क्या होता है ना, आप एक मेमोरी का साइकिल खत्म करेंगे उसमें. मेमोरी का साइकिल क्या है? एक है इनपुट, होल्ड एंड आउटपुट. वो एक साइकिल खत्म हुआ आपका. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि जब आप रिकॉल अब कर सकते हैं, when you can recall now, there is a chance that you will recall after 6 months. If you cannot recall now, you will never recall after 3 months. This is the most important thing. So instant recall में करना क्या है? आप एकेडमिकली भी कर सकते हैं, नॉन एकेडमिक भी कर सकते हैं. एकेडमिकली क्या कर सकते हैं, मैं अपने लिए बता रहा हूँ, तो इसके एंड में मैं बच्चों के लिए क्या करना है, आई विल जस्ट ट्वीक द सेम सिस्टम इनटू द स्टूडेंट्स पर्सपेक्टिव. बट अपने लिए क्या करना है? सो व्हेनेवर यू लिसन समथिंग इंस्टेंटली, तो आपको एक टू गिव ए वेरी सिंपल स्टेटमेंट, तोता बन जाओ. ऑफ कोर्स तोता सोचता नहीं है, वो बात है, लेकिन तोता बन जाओ का मतलब ये है कि आपने जो सुना है अपने भाषा में, अपने लैंग्वेज में उसको बाहर कर दो. सो somebody say, okay, let's say for example I say hi, my name is Anand. हाँ जी आनंद जी, क्या हाल है? इमीडिएटली तुरंत निकालो. आपने कोई दुकान में चले गया और यू वांट टू बाय सम गिफ्ट, बोलते कि अच्छा ये जो फ्लावर वेज है इसका 200 रुपए है, और ये बॉटल है इसका 150 है, और ये जो ये फ्रेम है उसका 150 रुपए है. Then you say it in your own words. अच्छा ये फ्रेम और ये बॉटल 150 का है और ये 250 का है, ठीक है. Just say it out in your own words. इसमें से क्या हो रहा है? This is a very very deep thing. Why I'm saying is, अगर आपको वो करना है तो पहला चीज ना, आप माइंडफुल बन जाओगे. आपका दिमाग इधर उधर चलता ना, वो पहले सुनने में आएगा, फिर you are listening, then you are recalling. So it will make sure that you are in the present moment. नहीं तो मैं एक सिंपल सी बात बताऊंगा. जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग टू यू, यू आर एबल टू सी मी, ऑफ कोर्स यू आर एबल टू सी मी, बट व्हाट इज द गारंटी दैट आई एम हियर? आई मीन मैं तो गारंटी दे सकता हूं क्योंकि मैंने बहुत प्रैक्टिस किया जिंदगी में, तो मैं यहाँ पर ही हूँ, आप जो देख रहे हैं वहीं पर हूँ. बट काफी लोग यहाँ पर नहीं होता, वो दिखेगा बंदा, लेकिन वो सोचता रहता कि यार अमेजोन का डिलीवरी क्यों नहीं आया, बच्चे ना आजकल इतना टीवी क्यों देखते हैं, अरे स्विमिंग पूल का मैनेजमेंट क्या हो गया है, सैटरडे भी सेमिनार के लिए क्यों बुलाया है, हजार चीजें सोचते रहते हैं लोग. Is it right or not? तो जब आप हजार चीजें सोच रहे हैं, तो जब मैं जो कुछ बोलूंगा आपके दिमाग में जाएगा भी नहीं. लेकिन क्योंकि आप यहाँ पर हैं, आप टिक मार लगाएंगे, अच्छा मैंने आनंद जी को सुना है, एंड आप बाहर जाएंगे, आप सोचेंगे यार आनंद ने क्या बोला यार, था नहीं. सो दिस इज व्हाट हैपेंस विद पीपल. आपके स्टूडेंट के साथ में भी ये होगा, आपके साथ में भी ये होगा. सो इंस्टेंट रिकॉल आप कर लेंगे, तुरंत करेंगे. दूध का दूध, पानी का पानी. You know that you are paying attention. If you are not paid attention, you can say sorry मैंने सुना नहीं, दोबारा बताएंगे आप, तो ऑटोमेटिकली आप रिकरेक्ट करके आप स्टेप ले सकते हैं तुरंत. सो वन इज इंस्टेंट रिकॉल. इंस्टेंट रिकॉल करने से आपका है, इट फैसिलिटेट्स अटेंशन. आपने हजार बार बोला सुना है कि अटेंशन डालो, अटेंशन करो, अटेंशन करो. अटेंशन करने के लिए दिस इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट थिंग, रिकॉल. अटेंशन, इंस्टेंट रिकॉल करके देखो, अटेंशन अपने आप ही होगा. ओके, द सेकंड वन इज it helps in proper registration. जो आपने attention डाला है तो आप register भी होगा, and it enhances awareness. जो आप बोल रहे हैं मैं सुनने का प्रयास करूंगा क्योंकि मुझे बोलना है दोबारा या recall करना है, either orally or mentally, right? And this is instant mindfulness. लोग ना mindfulness के बारे में बहुत ज्यादा बात करते हैं आजकल. ये तो बहुत सिंपल चीज है, mindfulness होगी. आप कुछ बोलेंगे, मुझे तुरंत मैं रिकॉल करूंगा, तो माइंडफुल रहना ही पड़ेगा ना मुझे. दिस विल फोर्सफुली मेक मी माइंडफुल. ओके, सो दिस इज इंस्टेंट रिकॉल. एक तरीका हो गया. मैं रिकॉल करने का अलग अलग तरीका बता रहा हूँ. दिस इज वन सिंपल थिंग. सो अगर ये क्लियर है, कैन यू जस्ट पुट आई इन द चैट बॉक्स, मीन्स इंस्टेंट, इंस्टेंट या आई चैट की टाइप कीजिए ताकि आई नो दैट इट हैज मेड सेंस फॉर यू. ओके जी, थैंक यू सो मच. तो आगे बढ़ते हैं हम लोग. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. सो सेकंड काइंड ऑफ रिकॉल, काफी तरीके का रिकॉल प्रैक्टिस कर सकते हैं. सेकंड वन है आपका इवेंट रिकॉल. नाउ इवेंट रिकॉल क्या होता है? आपके जिंदगी में ना हर दिन में 50-100 इवेंट्स होते रहते हैं. नाउ इवेंट का मतलब ये नहीं कि आपने कुछ वेबिनार अटेंड कर लिया, एक मूवी देख लिया, बड़ा बड़े, ये चीज नहीं बोल रहा हूँ. छोटे छोटे इवेंट होते रहते हैं. आपने कुछ खाना बना दिया, एक इवेंट है. आपने हल्दीराम में चले गए लंच करने के लिए, एक इवेंट है. आपने वॉकिंग चले गया, वो एक इवेंट है. आपने जिम में गया, एक इवेंट है. आपके रिश्तेदार आया है, उसके साथ में आपने गपशप किया है, और एक इवेंट है. ठीक है.
जब इवेंट खत्म हो जाएगा, जैसे आपका इवेंट खत्म हुआ, दूसरे इवेंट में जाने से पहले एक बार आप रिकॉल कीजिए कि हुआ क्या है। अच्छा, मैंने वॉकिंग में गया, वो संपत जी मिला, उसके बाद में से ये बात हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, बारिश हो गया तो मैं जल्दी जल्दी आ गया वापस। अब इवेंट क्या हुआ उसका रिकॉल कीजिए। अच्छा, मैंने मील किया हल्दीराम में, हल्दीराम में उसने 2 पराठा दिया, हरी चटनी दिया, प्याज दिया, अचार नहीं दिया इसमें। अच्छा ठीक है, जो भी है आप उसको रिकॉल कीजिए। आपने मूवी देख लिया, मूवी को रिकॉल कीजिए। आप टीवी देखते हैं तो कुछ 4-5 एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं, लोगों को बहुत चिढ़ जाते हैं कि यार इतने एडवर्टाइजमेंट्स क्यों करते हैं, तो उसको रिकॉल कीजिए। अच्छा, कौन सा एड देखा आपने? अच्छा, फेयर एंड लवली का था, फिर सर्फ का था, फिर कुछ बॉर्नविटा का था, कुछ और था, कुछ और था। यू कैन डू द इंस्टेंट रिकॉल एनी टाइम। ये क्या है ना, आपको दिमाग को अलर्ट रखेगा। इट डजंट मैटर व्हाट यू आर रिकॉलिंग, बट द रिकॉलिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जो आपका आउटगोइंग मसल्स, अगर आप बोल सकते हैं वर्चुअली, ऐसा कुछ मसल नहीं होता है, मैं ऐसे एग्जांपल के लिए बता रहा हूं कि आपका जो आउटगोइंग मसल्स होता है ना, वो आपको स्ट्रांग बनेगा और ढूंढ ढूंढ के निकालने का उसका एक्टिविटी स्ट्रांग हो जाएगा। तो पूरा जिंदगी में मेमोरी का क्या रूल है, तो ढूंढ के निकालना है ना। कोई क्वेश्चन पूछेंगे, आप आंसर ढूंढना है, आपके इतने सारे दिमाग में चीज है ना, उसमें से ढूंढ के निकालना है। एंड व्हेन यू डू दिस इवेंट रिकॉल बार बार जब करेंगे ना, यू विल बिकम एन एक्सपर्ट इन सर्चिंग एंड पुलिंग आउट इंफॉर्मेशन। एंड दूसरा चीज है कि माइंड को आप ट्रेनिंग दे रहे कि भाई ये सिर्फ अंदर डालने का बात है, कभी भी निकालूंगा मैं। सो द माइंड विल बिकम अलर्ट। मैं आपको सिंपल से एग्जाम्पल बताऊंगा। आप टीचर है तो 2 एग्जाम्पल है। आपने एक क्लास में चले गया और लेक्चर स्टार्ट कर दिया है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में, एग्जाम्पल बता रहा हूं, ठीक है। आपने लेक्चर स्टार्ट कर दिया, खत्म हो गया लेक्चर। दूसरा एग्जाम्पल है कि आपने लेक्चर स्टार्ट होने से पहले आपने बताया कि बच्चों हम लोग ना आज हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में सीखने वाले हैं, और एंड में एक टेस्ट होगा, और टेस्ट में आपको कम से कम 40 मार्क नहीं आया तो 2 दिन आपको ना सन में खड़े होना चाहिए, पनिशमेंट होगा कुछ, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं। कौन सी एग्जाम्पल में बच्चों का फोकस ज्यादा रहता है, फर्स्ट और सेकंड? First one is you just go and talk about it, and second one is there's a punishment if you don't get at least 45 marks. So the second one actually, right? Now second one क्योंकि कुछ ना कुछ punishment है या कुछ तो है ना। तो similarly अगर आप बोलेंगे कि आपको recall करना है तभी जाके mind focus करेगा, नहीं तो अच्छा ठीक है आने दो ना, अच्छा टीचर बोल रहे बोलने दो, अच्छा ठीक है बोलने दो। और क्या है ना, अगर आप बोलेंगे एंड में एग्जाम होगा, ये सब्जेक्ट 1 घंटे के हो सकता है, 4 घंटे के हो सकता है, लास्ट में फोकस करना शुरू नहीं करते, स्टार्टिंग से ही फोकस रखते हैं। जैसे इवेंट रिकॉल में क्या होता है ना, अगर इवेंट रिकॉल करना शुरू करते ना तो माइंड हमेशा फोकस रहना, ट्रेनिंग अपने आप ट्रेन कर लेते हैं ताकि वो इजीली प्रैक्टिस करे। सो दिस इज अबाउट द इवेंट रिकॉल। सो इज इवेंट रिकॉल मेकिंग सेंस? अगर इवेंट रिकॉल आपको सेंस कर रहा है तो ई करके टाइप कीजिए, इवेंट रिकॉल फॉर ई। क्लियर है? ओके जी, थैंक यू सो मच। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन है डे रिकॉल। Now this is something you should encourage yourself, and you should encourage your students, your family members, your niece, nephews, your uncles, aunts, everyone, they should do this. Now what is day recall all about? आपने 1000 बार सुने होंगे इसके बारे में, लेकिन कितने लोग करते हैं मुझे पता नहीं है। But this is one of the most deepest things which I actually tell people. And मेरे जिंदगी में ना, मैं पिछले 25 years से एटलीस्ट 95% कंसिस्टेंसी से एवरीडे करता हूं। मतलब 25 इयर्स में 95% मतलब इट इज ऑलमोस्ट 100%। एवरी डे करता हूं मैं डे रिकॉल। नो डे रिकॉल का क्या है, सिंपल सी चीज है। डे रिकॉल इज आपको हर दिन सोने से पहले 5 मिनट निकालिए जिंदगी में और आज का कैसेट चलाइए, आज का डे का वीडियो कैसेट आप माइंड में चलाइए। मतलब सुबह से शाम तक क्या हुआ उसी ऑर्डर, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, उसी ऑर्डर में सुबह से शाम तक क्या हुआ आप सोचे कि अच्छा क्या हुआ, अच्छा मैंने क्लास में लिया था, फिर यहाँ गया था, फिर यहाँ आया था, फिर बैंक में गया, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ। आप बहुत डीप जाने का जरूरत नहीं है। मेन चीज जैसे जो हमारा कंटेंट्स टेक्स्ट बुक के टेक्स्ट में कंटेंट्स पेज होता है, सिर्फ ये होता है, तो वैसे है।
और जो इवेंट रिकॉल है वो चैप्टर्स है। सो इवेंट रिकॉल पूरा दिन में करेंगे आप, और एंड में आप कर सकते हैं डे रिकॉल। और अगर आपने 3-4 चीज 10 चीज भूल गया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इट्स ओके। जितना आप ऑर्डर में जा सकते हैं, अच्छा बीच में कुछ छूट गया, अच्छा मुझे याद नहीं आ रहा, चलेगा, कोई बात नहीं, देन गो टू द नेक्स्ट वन। तो आप ऐसे करते हैं, आपको 2-3 दिन में, 1 हफ्ते में पता चलेगा कि आपका माइंड शार्प होना शुरू हो जाता है, ऑब्जर्वेशन शुरू हो जाता है। योर ऑब्जर्वेशन, योर इमेजिनेशन, कंसंट्रेशन, मेमोरी, फोकस, सभी कुछ एक साथ में, दिस विल गो हायर। एंड डे रिकॉल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आज क्लास में, आज सेशन में से अगर वो चीज एक उठाते ना आप, नाउ दैट्स द बेस्ट थिंग व्हिच यू हैव टेकन बैक होम। If you can just do this for 1 week, you will see the magic in your own life. So this is the simple thing which is about the day recall. Now day recall का क्या क्या कर सकते हैं, what are the things, very quickly I just want to share. Day recall facilitates attention, it creates traces for future recall, strengthens association, and it improves recall skills, increases observation, increases long term memory, and encourages mindfulness. ये पूरा day recall का एक्टिविटीज है। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आप जिंदगी में कुछ भी मिस करो, लेकिन डे रिकॉल मिस नहीं करना है प्लीज। यू विल थैंक योरसेल्फ फॉर डूइंग इट, एंड यू विल 15 दिन में आपके अंदर कुछ पता चलेगा कि यार कुछ तो हो रहा है जिंदगी में, पॉजिटिव चीज। एंड 1 महीने के अंदर जो आपके आसपास में टीचर्स है, फ्रेंड्स है, रिलेटिव्स हैं, वो बोलेंगे यार क्या करते हो तुम, यू हैव चेंज्ड अ लॉट फॉर पॉजिटिव। जस्ट बाय डूइंग डे रिकॉल यू कैन एक्चुअली get that kind of a result. So ये day recall हो गया। I'm just talking about different kinds of recalls which you can practice. So इसके लिए if this is clear, can you just put a D in the chat box so I know that day recall is clear? अगर आपका day recall clear हो गया तो D लगाइए, just put D in the chat box so I know that. Okay जी, thank you so much. तो आगे बढ़ते हैं। Day recall के बाद में आप एक चीज कर सकते हैं, random recall. Now random recall जैसा name itself suggests, it's very random, और इसमें ना कोई टेस्ट नहीं है। सो टीचर्स के लिए क्या होता है ना, हर बार टेस्ट हो जाता है, तो दिस इज नथिंग टू डू विद द टेस्ट। ओके, दिस इज जस्ट अ रैंडम रिकॉल। नाउ रैंडम रिकॉल में क्या होता है, आई मीन व्हाट आई डू इज लाइक सडनली मैं सोचता हूँ कि यार मेरे ना 10th क्लास के मेरे फ्रेंड्स का नाम कितने मुझे याद है। हाँ, राज, किरण, सुदर्शन, संपत, सो जो भी है आप एक बार याद कीजिए, जितना हो सके उतना। ओके, और मेरा इंग्लिश टीचर्स का नाम क्या है, नीलिमा मैम, राहुल सर, जो भी आपका नाम आएगा तो आपने यू कैन रिकॉल दैट। और यू कैन से 1 मिनट में एस से स्टार्ट होने कंट्रीज कितने याद कर सकता हूं मैं, हाउ मेनी कैन आई रिकॉल, सिंगापुर, क्या हो सकता है, सो जस्ट थिंक अबाउट, ओके, इन 1 मिनट हाउ मेनी थिंग्स ऑफ व्हाटएवर, इसको ना रैंडमली रिकॉल कीजिए। ये तो आप चाय पीते पीते भी कर सकते हैं। इसमें क्या होता है ना, आपका जो रिकॉल कैपेसिटी है वो बहुत, उसमें बहुत धार बढ़ेगा। एंड मेमोरी इज ऑल अबाउट रिकॉल। लोग ना मेमोरी पर काम करना है, मेमोरी पर काम करना है, अरे मेमोरी पर काम कुछ नहीं करना है, मेमोरी इज अ प्रोसेस। आपको काम करना है रिकॉल के ऊपर। लोग वो छोड़ के बादाम खाएंगे, सब कुछ करेंगे, फिर बोलते हैं यार मेमोरी बढ़ ही नहीं रहा है। नो, रिकॉल के ऊपर काम करना है, मेमोरी के ऊपर काम करने का कोई है नहीं है। मेमोरी इज ऑल अबाउट द प्रोसेस ऑफ रिकॉल। रिकॉल के ऊपर काम करना, एंड दिस इज व्हाट वी आर एक्टिवेटिंग। नाउ रैंडम रिकॉल इज अ फन काइंड ऑफ रिकॉल। आप कुछ भी याद कर सकते हैं। यू कैन सिंपली रिकॉल कि काजोल और शाहरुख खान एक्ट किया मूवीज में कितने याद है मुझे, रिकॉल करो ना। मोहम्मद रफी का गाना कितने याद है मुझे, हाउ मेनी कैन आई रिकॉल, जस्ट रिकॉल। जब मैंने जयपुर गया था तो कितने लोगों से मैं मिला था, रिकॉल करो। सो दिस आर आई लाइक द रैंडम काइंड ऑफ थिंग। एंड जैसे आप करते जाएंगे ना, यू विल बी सीइंग दैट योर कैपेसिटी टू रिमेंबर विल गो टू द नेक्स्ट लेवल। माइंड इतना शार्प बनेगा, इतना कंसंट्रेशन बढ़ेगा कि यू विल बी लाइक वाओ, मजा आ गया जिंदगी। सो इफ दिस इज क्लियर, कैन यू जस्ट पुट R in the chat box so I know that it is working for you. Okay ji, thank you so much. So then next one what you can do is you can do some small little things to jog your memory. And one more last thing आप कर सकते हैं, एक रिफ्लेक्शन भी कर सकते हैं। 1917 में एक बंदा है, चार्ल्स हनल करके एक बंदा है, उसने बोला था कि जिंदगी में आगे बढ़ना है, बहुत तेजी रफ्तार से बढ़ना है, आपको एक चीज करना है जिंदगी में, हर दिन आपने जो काम किया उसके ऊपर रिफ्लेक्शन करो। सो
reflection is a little bit more advanced than day recall. Now day recall में हम लोग सिर्फ रिकॉल कर लेंगे, अच्छा ये हुआ ये हुआ ये हुआ ये हुआ ये हुआ. रिफ्लेक्शन में हम हमारा सोच भी डालेंगे, अरे ये हुआ, क्या होना था, नेक्स्ट टाइम अगर ये होगा तो मैं क्या करूं, ये जो हुआ सही हुआ नहीं हुआ. नाउ रिफ्लेक्शन. नाउ आज के टाइम में क्या होना कि रिफ्लेक्शन एक डिक्शनरी का वर्ड बन के रहा है, लोग रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं क्योंकि रिफ्लेक्ट करने का कैपेसिटी कम, टाइम ही नहीं है लोगों के पास में. इतना दौड़ा-भागी करते हैं कि पता नहीं कहाँ भाग रहे हैं. आई ऑलवेज गेट अम्यूज्ड लुकिंग एट पीपल की भाग रहे हैं, कहाँ भाग रहे हैं, आई डोंट अंडरस्टैंड. सो दिस पीपल से देयर इज नो टाइम. अरे किसके लिए टाइम नहीं है? I'll tell you, I don't know how many of you know that Delhi. तो पहले बार मैं दिल्ली में गया था, तो I was staying in a place called Yamuna Vihar. So it's called Yamuna Par also. So like यमुना के उस साइड. तो लोग मानते हैं कि वो बहुत दूर है. तो एक ने बंदा बोला कि आप कहाँ रहता है? मैंने बोला यमुना पार. बोलते अरे बाप रे इतना दूर. मैंने बोला किसके लिए दूर, कहाँ के लिए दूर? मेडिकल शॉप है, स्कूल है, मंदिर है, रेस्टोरेंट है, मोटरसाइकिल की दुकान है, सभी कुछ है, किसके लिए दूर? लोग नहीं, पता नहीं, ऐसे पीपल हैव देयर ओन परसेप्शंस. सो सिंपली एक रिफ्लेक्शन करने से क्या होगा ना, आपका लाइफ ऑटोमेटेड मोड से निकल के अपने हाथ में आता है. तो आप देखते हैं ना काफी टाइम क्या होता है ना, लाइफ हो जाता है, लोगों को पता भी नहीं चलता क्या हुआ है. लोग ऐसे बातें करते हैं कि यार मैं ना गुड़गांव से दिल्ली ड्राइव करते चले गया, पता ही नहीं चला. लोग बातें करते रहते हैं, कॉफी खत्म हो गया, पता ही नहीं चला. अरे कॉफी खत्म हो गया, पता ही नहीं चला, क्या कर रहे हो जिंदगी में? मतलब आई मीन इट लुक्स लाइक ए वेरी सिंपल थिंग, इट्स नॉट सिंपल. लेट मी टेल यू, 300 ml हॉट कॉफी आपके अंदर चले गया, आपके बाहर गिर गया कोई बात नहीं, आपके अंदर चले गया, दैट मींस इट्स ए लिटरल फिजिकल अटैक है वो. अगर हम लोग बोल रहे हैं कि पता ही नहीं चला, तो अवेयरनेस ही नहीं है. जो रिफ्लेक्शन करने से, जो मैंने जो चीज बोला है उसमें करने से क्या होता है, अवेयरनेस, मेंटल अवेयरनेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है. इसमें से व्हेन यू आर अवेयर ऑफ थिंग्स, you will take less effort in absorbing. You will be able to observe better. You will be able to think with clarity. You will be able to get better results in life. So this is about the reflection part. तो मैं अभी एक very simply let me give some ideas which you can use for your students. जो same हमने चीज किया है उसको कर सकते हैं. So how you can help your students? पहले जो है instant recall. Now instant recall करने के लिए आप शायद यूज कर रहे होंगे, तो आप अगर नहीं करेंगे तो आप कॉन्शियसली यूज कर सकते हैं. तो आपने कुछ कॉन्सेप्ट सुनाने के बाद सिंपली यू कैन से ओके रिकॉल व्हाट आई हैव सेड. Now you can say there are 3 things which are there which will hurt your memory. They are disbelief, disinterest and disuse. Okay, do you get what is that? Can you just repeat? So क्या है ना, जब आप 2-3 बार आप पूछेंगे ना, तो बच्चों को पता चलेगा कि अच्छा मैम तो पूछते हैं, सर पूछते हैं, तो उसका माइंड ना रेडी होता है इसके लिए. सो यू आर हेल्पिंग योर किड्स बाय डूइंग दैट. जो इंस्टेंट रिकॉल है. इवेंट रिकॉल में क्या कर सकते हैं ना, अगर आपका क्लास पीरियड लेंथ अगर 40 मिनट का है, कितना लेंथ है आपका, एक पीरियड का लेंथ कितना होता है आपके स्कूल में? यू कैन जस्ट पुट योर आंसर. व्हाट इज योर वन सब्जेक्ट पीरियड लेंथ कितना होता है? 30 मिनट्स का है, ओनली 30 मिनट्स और 30-35 मिनट्स. अगर आपका, मेरे हिसाब से अगर आपका 30-35 मिनट्स का पीरियड का लेंथ होता है, लेट्स से आई एम जस्ट टेकिंग एग्जांपल ऑफ 35 मिनट्स. अच्छा काफी डिफरेंट स्कूल्स है शायद. ओके नाउ ओके लेट मी टेक एग्जांपल ऑफ 40 मिनट्स का एग्जांपल लेते हैं. आप अपने हिसाब से आप कैलकुलेट कर लो. अगर 40 मिनट्स का एक पीरियड होता है तो आप 35 मिनट्स का ही कंटेंट दीजिए और लास्ट 5 मिनट्स में बच्चों से पूछिए कि उसने क्या सीखा. इसमें से क्या होगा कि आप एवरीडे करेंगे तो आपका इंटरेक्शन भी बढ़ जाएगा एंड पीपल विल से कि अच्छा पूछ रहा है. जैसे जो लोग अनंत और संपत जो क्रिकेट खेल रहे होंगे ना, उसको ये लगा यार कुछ चल रहा है इसमें, तो अगले दिन से वो कम से कम दे विल स्टार्ट पेइंग अटेंशन. तो काफी बार क्या करते हैं ना, 40 मिनट है जल्दी जल्दी खत्म करते हैं 40 मिनट, तो आप 35 मिनट्स का कंटेंट दीजिए और उसको आप पूछ सकते हैं. सो दैट इज अबाउट द इंस्टेंट रिकॉल. नाउ डे रिकॉल आप इंटरेस्टिंग चीज से कर सकते हैं. And I think you probably would be doing that. If you're not doing it, you can start doing it. And that is whenever you take a new session today, please spend 2 minutes to 3 minutes in reviewing what you have done in the last session. बच्चे खुद नहीं करते हैं, हम ही करना है.
because we want them to get result, we have to do it. So please start with 2 to 3 minutes of recap of what has happened yesterday. फिर उसके बाद में निकालिए. मैं अपने टीवी वेब सीरीज और टीवी सीरियल काफी देखते होंगे. इसमें आपको देखेंगे ना, पहले आपका पिछले सिस्टम में क्या हुआ वो दिखाएंगे 2 मिनट, फिर वो दिखाएगा ना व्हाई बिकॉज जब हम लोग टीवी सीरियल देके बाहर निकलते हैं, एक लाइफ करके एक चीज है हमारे ऊपर हावी हो जाता है. लॉट ऑफ थिंग्स हैपन इन लाइफ. ट्रैफिक बढ़ गया, ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, और वॉर चल रहा है, कोविड बढ़ गया, 1000 चीजें चल रहा है. तो दूसरा दिन हम लोग जब सीरियल देखेंगे ना, हमारा माइंड ना उसको कैच नहीं कर पाता है. एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ, एक एंड हुआ है सीरियल, एक लेडी ने एक बंदे को थप्पड़ मारा, वहां एंड हो गया. एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ठीक है. नेक्स्ट डे वहीं से स्टार्ट किया है, हम लोग को पता नहीं चला यार क्यों मारा इसने, व्हाट हैज हैपेंड. तो उसका ना 2 मिनट का रिकैप करते हैं. अच्छा ये बंदा ऐसा ऐसा बोला है इसलिए एक थप्पड़ मारा है, और आगे देखो. क्योंकि ना एक कनेक्टिंग ब्रिज हो जाता है, तो उसमें ना आपको स्ट्रेस भी कम हो जाता है. क्या होता है ना कि मैं आपको सिंपल से चीज बताऊंगा, जब मैं क्लास में आऊंगा, लाइक एज ए स्टूडेंट मैं पढ़ने के लिए बैठूंगा या क्लास में आऊंगा, तो कुछ करके आयो ना. मैंने आइसक्रीम खा के आया होगा, या मैं घर में लड़के आया होगा, या स्कूल बस में कुछ मस्ती करके आया, कुछ तो किया होगा. तो मैं क्लास में आ गया, आपने पढ़ना शुरू किया, पढ़ाना शुरू किया, तो क्या होगा ना, मेरा माइंड जो है अभी स्कूल बस में है, तो यहाँ आने तक ना 2-3 मिनट लगेगा. फिर वो 2-3 मिनट आप नहीं रुकेंगे मेरे लिए, और आप क्लास आगे बढ़ जाएंगे. 10 मिनट के बाद में जब मुझे समझने का औकात मिलेगा, सिर्फ एक चीज समझ में आएगा, एंड वो एक चीज है कि मुझे कोई समझ में नहीं आ रहा है. When I get a capacity to understand, I will only understand that I am not understanding anything. Then I'll say छोड़ो ना यार, होमवर्क कर लेते हैं. अंडर टेबल एक्टिविटी, अंडर टेबल होमवर्क करना शुरू कर देते हैं. तो आप वो पहले के 2-3 मिनट आप रिव्यू करेंगे. So this will help the kids in a very powerful way to minimize the distraction which they have come in. उसको ऑफसेट करते हैं और आपके सब्जेक्ट को कनेक्ट करने में हो जाएगा. So you will create a better impact on the kids. So that is how you can actually help your kids in doing that. And other thing which you can also do is to ask them questions. So this is which you might be doing already. So these are some of the things which I thought, in this short time which I could share. तो अभी 10 मिनट के टाइम है, तो if you have any questions, I am here to answer your questions. So memory के ऊपर कुछ भी questions होगा, you can ask me. I will be more than happy to share answer the questions. So this is my telephone numbers. Okay, मैं ना आपको कुछ information ही दे दूंगा बाद में. So we'll switch off the slide. हाँ जी. So far, if you got some value, can you just put value in the chat box so I know that you got some value from this session? अगर आपको value मिला तो आप value करके टाइप कीजिए, ताकि मुझे पता चलेगा कि कुछ सैटरडे के दिन आपकी जिंदगी में कुछ वैल्यू ऐड किया मैंने. Thank you very much. Okay, super. Thank you. All right. So if you have any questions, you can always ask questions. So we have some time. And मैं ना एक चैट में एक लिंक भी डाल रहा हूँ. मैं सरगम मैडम को भी डाल दूंगा लिंक. So that is a small link which is about what you learned. So you can share your learning with me. And जैसे आप भेजेंगे, I do write some quotes and मैं कुछ short articles भी लिखता हूँ. So if you want, I can also share that with you. And one commitment from my side is I don't have time to spam you, nor I will sell anything to you. So it will be whatever content which I create. If I think it's useful for you, I'll keep sharing that, so you can fill up that. And please write your learning or your testimonial in that link, ताकि मुझे पता चलेगा कि how I'm adding value and what I can change for the next session. So that's a small request. Please do that, share that, fill up that link. आपको 2 मिनट लगेगा सिर्फ. और मैम आपको बाद में please circulate that as well. Sure, sir. Sure. Okay, so it's open for questions. Back to you, ma'am. Yes. Sir, I just want to tell you one thing. आपने एक बहुत ही अच्छी लाइन एक सेशन में कही है. Before you forget something, you have to get something. So this is, I think, today's I have learned for this session. ये एक लाइन मेरे माइंड में भी कि अब बात ठीक है आपकी, जब तक हम कुछ लेंगे ही नहीं, हम उसको भूलेंगे ही नहीं. Yeah, right. And I just want to add something for you, sir. Please. Just a second. परिंदों को मिलेगी मंजिल एक दिन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं. परिंदों को मिलेगी मंजिल, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं, और वही लोग रहते हैं खामोश अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं.
So this is for you, Anand sir, and thank you for the wonderful session of today. ये एक्चुअली मेमोरी रिकॉल सेशन था हम सबके लिए. तो एंड अभी मैं अपनी टीम को कहना चाहूंगी, ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल एंड एंजल्स पैराडाइज, अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस और क्वेरीज हैं आप आनंद सर से पूछ सकते हैं. हमारे साथ हिमांगी मैम भी हैं जो साइकोलॉजिस्ट है सर के पैनल से. तो थैंक यू ऑल्सो हिमांगी मैम, आप यहाँ पे आए हमारे साथ. एंड आई जस्ट म्यूट एवरीवन. यस, आप म्यूट कर सकते हैं. एंड इफ एनीवन हैव क्वेश्चंस दे कैन आस्क. You can also raise your hand so that we can also call your name so that it will be easier. Either you can ask a question or anything. Anand sir, it was a wonderful session. Thank you, sir. It is always so much to learn from you. And dekho, as a student, when you are teaching in the class, you expect your student to ask the questions. और teacher को तभी पता चलता है कि जब बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं तभी पता चलता है बच्चे ने सीखा है कि नहीं सीखा, या उनका इंटरेस्ट था कि नहीं सीखा था. जैसे अभी सर ने किया रिकॉल, तो ये रिकॉल करने का टाइम है. द मोर यू आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम सर, सो वी स्टिल हैव गॉट 8 minutes फॉर द सेशन, सो द मोर यू विल रिकॉल एंड मोर बेटर पर्सन यू विल बिकम एज फार एज थिंग इज कंसर्न. और एक सर ने जो प्रैक्टिस बताई थी कि रात को जब आप जाते हो तो आप लिखा करो दैट, ये प्रैक्टिस दुनिया के जितने सक्सेसफुल लोग हैं उनके पास ये प्रैक्टिस है. वो पूरे दिन का एनालिसिस करते हैं, क्या अच्छा हुआ, क्या बुरा हुआ, और कल और क्या अच्छा करना है, और आज जो अच्छा नहीं हुआ वो कल और कैसे अच्छा करना है. So this is the practice that all the successful people do. So बहुत छोटी छोटी चीजें सर ने बताई हैं which is going to be absolutely helpful to you. So the questions are all over open, so you can ask the questions from the sir that you want to ask. You know, I know everybody is full of problems, but we can have 2-3 questions from the teachers, right? Sure. Wow. So I remember शोले का डायलॉग याद हो रहा है. इतना सन्नाटा क्यों है भाई? I think आपकी आज value addition इतनी ज़्यादा थी कि everybody is now a learned person. So everybody is having the best of the memory. So anyway, so if you don't have, so what we will do, ये जो सर ने एक फॉर्म दिया, सर ये फॉर्म is all about what? It's about what you have learned, one learning what you have got, or your testimonial. जो भी दोनों भी लिख सकते हैं आप. So it's just a simple thing, so you can fill it up. Or maybe one more thing which we can do is if you have no questions you can also share your one learning, तो आपके learning will motivate other people. अच्छा किरण जी बताइए. किरण प्रीत, go ahead ma'am. Yeah sir, good morning sir. Good morning. Yeah sir, मैंने आपसे ये पूछना है कि हमने आउटपुट पे वर्क करना है, इनपुट पे हम जो लेते हैं, हम जो रीड करते हैं उसको हमने लर्न करना है, तो उसके बाद उसको हमने उसके साथ ही जैसे लाइक किसी को सुना के या मिरर में बोल के फिर हम उसको ऐसे आउटपुट को निकालना है हमने. बिल्कुल एग्जैक्टली पकड़ा आपने, सही पकड़ा. जैसे आपने एवरी लर्निंग शुड एंड विद एन आउटपुट, एनी लर्निंग इंटरवेंशन शुड एंड विद एन आउटपुट. तो अगर आप ये रूल बना लिया ना, आपका एब्जॉर्प्शन बहुत ज्यादा हो जाएगा. आउटपुट करने के लिए कहां से, आई मीन वन ऑफ द बेस्ट वेज टू लर्न इज टू टीच. तो मिरर के सामने बता दो, या आप जूम रिकॉर्ड कर लो अपने खुद, आपका डॉक्यूमेंट भी पड़ा रहेगा, या आपको कुछ नहीं मिलेगा आप ये बॉटल से बता दो. टीच टू द बॉटल. क्योंकि आप जब बोलेंगे, जो आगे के बंदे सीखना है नहीं सीखना है उसका मर्जी है, उसको रेस्पेक्ट करेंगे हम लोग. लेकिन जब आप बोलेंगे आप जरूर सीखेंगे, यू विल बिकम ए बेटर पर्सन. सो इसलिए आउटपुट करना जरूरी है. सो डिड दैट आंसर योर क्वेश्चन मैम? यस सर, थैंक यू सर. हाँ जी, ओके, सुपर. So you can share your learning. So maybe you can one learning which you have got, you can share. Good morning, sir. Yes, good morning. सर आपने बहुत वंडरफुल सेशन लिया फर्स्ट ऑफ ऑल. सेकेंडली ये चीजें हम डेली रूटीन में विचार करते भी हैं, बट कुछ ऐसे टाइम होते जो हम फिर भी कहीं ना कहीं मिस कर जाते हैं. डेली वॉक. मैम आपका ना आवाज बहुत ब्रेक हो रहा है. ओके, आप टाइप कर सकते तो बढ़िया होगा, या आप कुछ नॉट वेरी क्लियर. Is it audible now? Yes, now audible. Thank you. Yes, sir.
गुड मॉर्निंग सर, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली, ये जो सेशन है ये एक वंडरफुल के साथ साथ बहुत हमने बहुत चीजें इसमें सीखी है। लाइक हम जब वर्क करते हैं, चाहे वो हमारा घर का काम हो या हमारा ऑर्गेनाइजेशन का वर्क हो, वी हैव गॉट मेनी टास्क एंड हम टू डू लिस्ट भी बनाते हैं अपनी कि आज हमने ये वर्क करने हैं, बट स्टिल उस टू डू लिस्ट में हम रिकैप घर पे जो समटाइम्स करते हैं हम हमारे पास 10 टास्क हम 9 करते हैं, एक हमारे माइंडसेट में रहते हैं कि भूल जाते हैं हम। बट मुझे सबसे जो चीज आती लगी थी एक चीज रात को जैसे वर्क अपॉन है कि हमने क्या कंप्लीट किया, वो हमारा कंप्लीशन बिल्कुल परफेक्ट हुआ या उसमें भी कहीं पे अगर मिस्टेक है तो वी नीड टू कम नेक्स्ट एंड डू द करेक्ट फॉर्म ऑफ दैट मिस्टेक। एंड एक चीज मुझे ये बात अच्छी लगी, एंड सेकेंडली जो आपने जो फॉरगेट की जो डेफिनेशन बताई है तो दैट इज आउटस्टैंडिंग कि फॉरगेट करने के लिए भी हमें वो चीज की नॉलेज होगी, देन वी कैन फॉरगेट। So I thoroughly loved your session. Thank you very much. Thank you, ma'am. Yes. Yeah, So probably we have anyone has any questions? another 3 minutes we have. So if you have any. Okay, if no questions, so back to Yeah, sir, for this wonderful session, I just want to give you the certificate of appreciation. So this is the so beautiful session with you. Yeah, and Thank you. big round of applause, everyone, for the Anand sir. Thank you very much. Thank you. Yeah, and thank you Vikranji for having me here. All our pleasure, and it is all our good luck that we could have you for this session. And definitely वो कहते हैं ना कि वो चिंगारी लगाना बड़ा जरूरी होता है, आग अपने आप बाद में पकड़ लेती है। आज आपने चिंगारी लगा दी है तो आई थिंक जिनमें बारूद है अंदर एज अ बच्चों को कुछ सिखाने के लिए, डेफिनेटली दैट विल बर्न दैट फायर इन देम टू बी अ बेटर लर्नर एंड अ बेटर टीचर। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन, थैंक यू सो मच एंजल्स पैराडाइज एंड ऑक्सफोर्ड टीम मेंबर्स। सो विश यू ऑल द बेस्ट, एंड जस्ट मेक श्योर कि ये जो फॉर्म अभी सरगुन मैम आपको देंगे वो अभी जरूर भर देना, बिकॉज सर वुड लव टू हैव द फीडबैक। और देखो सर ने अपना टाइम स्पेयर किया, सर ने अपनी नॉलेज आपको दी है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू गिव हिम द राइट फीडबैक and it will be helpful to him to give better knowledge. So thank you so much once again, and see you all again. Bye. Thank you everybody, have a wonderful time and a Thank happy you, sir. weekend. Bye bye. Bye everyone. Thank you, sir. Thank you, sir. Thanks all.